Okay, good morning friends. Till yesterday, we discussed the word cost, which is the monetary value of all sacrifices to achieve an objective. From cost, we went to classification of cost, element-wise classification, material, labor and expenses. Then we subdivided each element of cost into two parts, direct and indirect. Direct cost is called prime cost. All indirect costs together are called overheads. Then we reclassified overheads broadly into three categories: factory overheads, administration overheads and selling and distribution overheads, broad three categories. Then using this classification of cost, we compiled a statement called cost sheets. So if you put all this data into a format, it becomes a cost sheet, which is another chapter again, which we are going to discuss in that chapter. Then we went ahead to the word costing. The simplest definition of costing, it is the process of ascertainment of cost. Cost calculate करने का तरीका is costing. But this way in which you ascertain the cost would be different for different industries. And we were making the list that for which type of industry, which method of costing will be applicable. We had discussed few methods yesterday, and remaining we have to discuss today, and we have to move further. So you will give me from your memory the name of these different methods. I will try to make a list again of methods of costing. Come on. Very good. Job costing, batch costing, right, single output or single unit costing or just output costing, various names, but single output is a better word. Contract costing, very nice, your memory is very good. Okay, process costing, joint product byproduct costing, एक रह गया है, रुको, नहीं कॉन्ट्रैक्ट आ गया, हाँ, सर्विस कॉस्टिंग also known as operating costing, हाँ, process costing is also known as operating में फर्क करना, operation costing is process costing, operating costing is costing for service industry, today we will be discussing it, and multiple costing. Out of which we discussed job costing in very much detail so that you understand all the methods. In any industry where goods are manufactured or services are provided as per the specific needs and requirement of customer, such industry is known as jobbing industry. Such industry is called as jobbing industry, and you have to maintain the record job wise, means for each job separately, because each job is different from another. Then we extend this concept to batch costing. Whichever industry we manufacture the goods in small lots or small batches. We took the example of pharmaceutical company, right? Please remember, one company manufactures variety of medicines, not one medicine, variety of medicine, but each medicine is manufactured in different batches, right? Breads, biscuits, so variety of them you manufacture, but you manufacture one batch of one variety, then another batch of another variety, then third batch of another variety, and again so on. So there we use batch costing, here we maintain the record batch wise. This is the simplest method of costing, used in very few industries where you manufacture only one product, identical product throughout the year, no change in size, shape or color. So only one product when is manufactured throughout the year, then we use single output costing, which is the simplest method, where cost per unit can be calculated as total cost divided by total output. And I told you one thing, institute has never asked a question on this because there is nothing to ask, right? And therefore this chapter is also not separately projected as a separate chapter because there is nothing to write except one formula. Actually in our notes, in volume 2 notes, you will find these three I have clubbed: job, batch and single output costing, small one. So I have clubbed into one. And indirectly speaking, this methods of costing is your volume 2 notes, if you remember. First one was prime cost and overheads.
First notes which I have given the name classroom notes. Second notes I have given the name methods of costing. Then yesterday in detail we discussed process costing. We took the example of sugar factory. In sugar factory, the sugar is manufactured in 4 stages, right? In simple words we took, not technical words. In 4 stages we did the production: crushing, boiling and cleaning, crystallization, and then packing, weighing and packing. So in 4 stages the sugar gets produced, and you have to maintain the record process wise, process 1 account, process 2 account, process 3 account, and so on, which naturally we will be studying in detail in the separate chapter called process costing. And a smaller part of process, sub part of a process is called operation also. Then linked to process costing is another topic called joint product byproduct costing, right? If you remember yesterday's last discussion, in first crushing process you get sugarcane juice which goes to the next process, but you get bagasse, जिसको हम कचरा बोलते थे, उसका टेक्निकल नाम है bagasse. So it's not a कचरा, कचरा means waste. तो वेस्ट नहीं है, वेस्ट यानी जिसकी कोई कीमत नहीं, उसको बोलते हैं हम वेस्ट, विच वी हैव टू थ्रो. ऑन द कॉन्ट्री फेंकने के पैसे लग सकते हैं, वेस्ट. तो वेस्ट में और इसमें फर्क है, इसका नाम है, इसका कुछ काम है, इसलिए इसको नाम क्या दिया है, बगैस, क्योंकि एक प्रोडक्ट है. ठीक है, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है, वैल्यू ज्यादा नहीं है, इसलिए तो उसको हम बुलाते हैं बाय प्रोडक्ट. वैल्यू ज्यादा रहती है उसकी मार्केट में तो उसको बुलाते हैं हम जॉइंट प्रोडक्ट. तो जॉइंट प्रोडक्ट इज वन हुज इकोनॉमिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इज हायर. जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बहुत कम है लेकिन वो कचरा नहीं है, तो उसको हम बुलाएंगे बाय प्रोडक्ट. बाय प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है वो. तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं बगैस, जो फ्यूल करके यूज कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. पेपर इंडस्ट्री एज इनपुट करके यूज करती है टू मैन्युफैक्चर पेपर पल्प. तो शुगर फैक्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग तो आप लगाएंगे, लेकिन साथ में ये भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोसेस से एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहा है. When a single process gives you multiple outputs, then we have to also make use of joint product byproduct costing. Second process में भी वो जो मलाई निकलती है boiling and cleaning process में, वो मलाई का नाम था molasses. वो molasses को distillation किया, यानी और एक प्रोसेस करनी पड़ती है distillation process, तो उससे बनता है अल्कोहल, और अल्कोहल से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं. लिकर भी बनती है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनता है फॉर इंडस्ट्रियल यूज, मेडिसिनल अल्कोहल. खांसी की जो दवा रहती है ना दोस्तों, कभी ध्यान से पढ़ना उसके लेबल पे, खांसी की दवा में कुछ % अल्कोहल रहता है, और इसलिए नींद आती है खांसी की दवा पीने से, क्योंकि इसमें अल्कोहल रहता है. एथेनॉल बनता है जो हम पेट्रोल के साथ मिक्स करके फ्यूल के लिए यूज करते हैं गाड़ी चलाने के लिए. इट्स अ वेरी गुड फ्यूल. एथेनॉल इज अ वेरी गुड फ्यूल टू रन द व्हीकल, राइट. एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है. तो एथेनॉल भी उसी से बनता है. स्पिरिट बनता है. अरे इतना क्या, डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेने जाओ तो इंजेक्शन लगाने के पहले कुछ लगाता है, ठंडा ठंडा लगता है. अरे वो स्पिरिट ही तो है. वो बना कैसे था, वो कचरे से, बास मारने वाले कचरे से. हाँ, अब कचरा नहीं बोलेंगे, मोलासेस बोलेंगे, क्योंकि उसका नाम है, उसका काम है. तो मोलासेस था वो. तो ऐसे बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, एंड देन शुगर गेट्स प्रोड्यूस्ड. एनीवे, तो यहां तक हमारा डिस्कशन हो चुका था. अब बचे हुए पे चलते हैं. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज जस्ट अ लार्जर वर्जन ऑफ जॉब कॉस्टिंग. इसका बड़ा रूप है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. नो व्हाई आई सेड दिस. सपोज इफ आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर एंड आई गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट अ flyover bridge at one place. At another place I got the contract of construction of a dam on a river. Third place I got a contract of construction of airstrip, airport modernization work. So I have got 3 contracts at different places. हम हर कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं साइट. यदि आपको याद हो तो कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं ये साइट पे काम चल रहा है, ये साइट पे चल रहा है, तो यू कैन कॉल इट एज साइट 1, साइट 2, साइट 3, राइट. बैंगलोर साइट, पुणे साइट, मुंबई साइट, ऐसा भी बोल सकते हैं. ये तीनों काम अलग अलग है, जस्ट लाइक अ जॉब. ये जैसा काम दिया जाएगा उसके हिसाब से कंप्लीट करके देना पड़ेगा. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ऐसा है कि मैंने फ्लाईओवर ब्रिज बना के शोकेस में रख दिए, आप आइए जो पसंद आए खरीद के ले जाइए. ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं. कहने का मतलब यू हैव टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर. तो ये तो सेंटेंस इसके लिए भी बोला था मैंने. Where the goods are manufactured or services are provided as per the need and requirement of customer, we call it as job costing. वही डेफिनेशन में इसके लिए भी बोल रहा हूं. तो यहां तक सिमिलर है. कौन? जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सिमिलर है, वो सेम नहीं है.
The only difference is contracts are large in nature and it takes more than 1 year to complete the contract. If the work can be completed in less than 1 year, it goes to job costing. If the work requires more than 1 year, it goes to contract costing. बस इतना ही फर्क है. So each contract is a job, but it takes longer time. अब जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर ब्रिजेस को 5 साल लगने वाले हैं, 5 years it will take to get it completed. और मुझे प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में निकालना है. कैसे निकल सकता है क्या? पहली बात, काम ही कंप्लीट नहीं हुआ है, वर्क इज नॉट येट ओवर. रियली स्पीकिंग यू कैन कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट ओनली ऑन कंप्लीशन. 5 साल खत्म होने के बाद पूरी कॉस्ट पता चल जाएगी, रेवेन्यू से कंपेयर करूंगा और प्रॉफिट आएगा. लेकिन आप 5 साल के लिए अकाउंटिंग को पेंडिंग रखेंगे क्या? और मैं यदि कंपनी हूं, आपको पता होगा एक बड़ी कंपनी है इंडिया की, L&T, Larsen and Toubro, they call themselves as engineers of India. They undertake huge projects, right? उसको टर्न की प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट्स. यानी आप सब दे दो, हमको पैसे दे दो और लैंड दे दो, बाकी सब हम करके देंगे. यू जस्ट टर्न द की, स्टार्ट एंड प्रोडक्शन विल बी ऑन एंड एवरीथिंग वी विल एग्जीक्यूट, एंटायर वर्क. लार्ज कॉन्ट्रैक्ट, लार्ज डैम्स दे डू कंस्ट्रक्ट. तो ये कंपनी को हर साल एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी पड़ेगी. तो काम यदि 5 साल चलने वाला है तो बीच बीच में प्रॉफिट कैसे निकालेंगे व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीट? बराबर, पार्शियल कंप्लीशन के बेस पे निकालना पड़ेगा. एग्जैक्टली वही तो पढ़ना है. कहां? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में. तो जॉब कॉस्टिंग का लार्जर वर्जन. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में यही पढ़ना है कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पे कॉस्ट और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना. So for books of accounts we have to break it. We have to break it in parts. Year 1 का प्रॉफिट निकालते आना चाहिए अलग, Year 2 का, Year 3, Year 4 और Year 5, ईयर वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करते आना चाहिए. उसको प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड बोलते हैं. वैसे हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में that whatever proportion of work is completed, on that basis you will calculate cost and profit on that contract, and then you will take it in the books of accounts. So that we will study in contract costing. So contract costing is a variation of job costing, only longer duration is there and you have to ascertain the profit even if the work is not fully complete. इतना काफी है. पहला इंट्रोडक्शन है ना, पहली मुलाकात है, तो फिर बाद में सब एक एक चैप्टर है हमारे इस वॉल्यूम के. अब चलते हैं सर्विस कॉस्टिंग, ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. पुराना नाम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग था. इंस्टीट्यूट ने उसको इसी चीज को दूसरा और एक नाम दे दिया. मैंने बताया गणपति बापा के बहुत सारे नाम है, बापा एक ही है, कोई भी नाम से बुला लो जो आपको पसंद हो. तो ओल्डर नेम, न्यू नेम, सर्विस कॉस्टिंग. This is the method of costing used for service industries. All service industries use the method of costing called operating costing or service costing. क्योंकि ज़्यादा बातें मैन्युफैक्चरिंग की हो रही थी और होती हैं क्लास में, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री भी तो बहुत बड़ी है, तो उसके लिए अलग से मेथड है. फिर चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, एयरलाइन हो, होटल यानी अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट नहीं है, होटल यानी रूम लेके हम वहाँ रहते हैं, अकोमोडेशन, गुड्स ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या है? सर्विसेज है, राइट? तो ये सभी सर्विसेज के लिए विल बी यूजिंग सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. नाउ मल्टीपल कॉस्टिंग. दोस्तों मल्टीपल कॉस्टिंग नाम की कोई मेथड नहीं है. क्या बोला मैंने? नाम की कोई मेथड नहीं है. ऐसा आप ही बोल रहे हैं और ये लिस्ट में आप ही लिख रहे हैं. ये तो साला गड़बड़ है. हमको क्या कंफ्यूज करने के लिए बुलाया गया यहाँ? नहीं नहीं, इस नाम की अलग मेथड नहीं है. लेकिन when you make use of more than one method together, मेथड यही है 1 to 7, but when you make use of more than one method together, it means when you use multiple methods of costing, you are said to be following multiple costing. I hope the meaning is clear. मैं कोई फॉरेन इंग्लिश में तो बात नहीं कर रहा ना, यूएस यूके वाली ना, इंडियन इंग्लिश. When you make use of multiple methods of costing, multiple methods from 1 to 7, but not one, more than one method at a time. There are certain industries where you have to make use of multiple methods of costing together to ascertain the cost.
Cost of a cost object, right? Cost object is whose cost we want to calculate, goods or services. उसकी cost निकालने के लिए एक से ज्यादा मेथड को यदि यूज करना पड़ रहा है, then you will say that my organization is following multiple costing. Actually multiple costing वो नाम है, उनका बोलने का मतलब है we are using multiple methods of costing. ये करेक्ट तरीका है कि मैं एक से ज्यादा मेथड यूज करता हूं मेरे इंडस्ट्री में, मेरे कंपनी में, लेकिन ऐसा बोलने की जगह पीपल से वी फॉलो मल्टीपल कॉस्टिंग, तो आप सोचेंगे मल्टीपल कॉस्टिंग नाम की कोई अलग ही मेथड है, तो अलग मेथड नहीं है, इनका कॉम्बिनेशन है, कोई भी कैसे भी कॉम्बिनेशन जो जिस इंडस्ट्री को सूटेबल हो. अब आप बोलेंगे सर फिर एग्जाम्पल तो समझाओ. चलो हम चलते हैं हॉस्पिटल, सिर्फ इमेजिनरी, हाँ जाना नहीं है. हॉस्पिटल में आपने देखा होगा पेशेंट को जब डिस्चार्ज मिलता है कुछ दिन बाद, तो उसकी बिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करने में जरा टाइम लगता है. डिस्चार्ज में काफी टाइम लगता है, वो बिल सेटल करने में. रीजन उसमें इतनी मल्टीपल सर्विसेज रहती है, कुछ कॉमन सर्विस रहती है, जैसे टाइप ऑफ रूम्स रहते हैं, यानी होटल के जैसे, अरे भाई जनरल वार्ड, फिर स्पेशल वार्ड, फिर नॉन एसी, एसी, फिर क्या एकदम सुपर फाइन, फिर आईसीयू, तो कुछ अकोमोडेशन चार्जेस लगते हैं. फिर आप वहीं से मेडिसिन भी लेते हो, उधर मेडिकल स्टोर रहता है, उसका भी बिल उसमें ऐड करना है. फिर जो एक्सपर्ट डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेट किया, कंसल्ट किया, उनकी फीस उसमें ऐड करना है, बराबर है. फिर वहां पर वो पैथोलॉजी लैबोरेटरीज रहती हैं, वो ब्लड सैंपल चेक किया, यूरिन सैंपल चेक किया, जो भी किया, तो वो सब का भी रिपोर्ट आता है, वो सब वहीं रहता है कि भाई आपको इधर से भागना ना पड़े, सब इनसाइड, एवरीथिंग इनसाइड, बट देयर आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज. वो सबको क्लब करके फिर आपका बिल बनता है. फिर उसमें से आपने कुछ एडवांस पे किया, वो माइनस करके बचा हुआ बिल लेके फिर आपको बोलते हैं गुड बाय टाटा, राइट. और जरूरत पड़े तो फिर से आ जाना. हॉस्पिटल वालों ने नहीं बोलना चाहिए ये, बाकी हम मेहमान को बोलते हैं ना और आइए अगली बार, तो हॉस्पिटल वाले ने बोलना, क्या बोलना चाहिए एक्चुअली रिसेप्शनिस्ट ने फाइनल बिल पे कर समय, भगवान करे आपको फिर यहाँ आने की जरूरत ना पड़े, लेकिन उसको निकाल देंगे काम से, ऐसा बोला उसने. तो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन वाले क्या बोलेंगे, उनको बोलने का हम रेडी आपकी सेवा के लिए तत्पर है, बार बार आइए. एनीवे मैं भी वो व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने भी शायद आपको बोला था या भूल गया, आई डोंट नो. मेरी भी इच्छा है मुझसे एक ही बार पढ़ो और अगली स्टेज पे निकल जाओ, बार बार वापस मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े और वापस रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े. एक स्टेज में इंटरमीडिएट क्लियर, सीए फाइनल, उसके बाद सीधा नेशनल प्रॉपर्टी यानी सीए. तो सर्विस कॉस्टिंग में मैं वो हॉस्पिटल पे था. अब आप देखेंगे हॉस्पिटल में कुछ सर्विसेज कॉमन है जो सभी को दी जाती है, और कुछ स्पेसिफिक एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट है. कॉमन सर्विसेज यानी टाइप ऑफ अकोमोडेशन, वो सभी के लिए है, उसमें से सिर्फ आप चूज कर लो, वैरायटी उसमें से एक चूज करो. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अकोमोडेशन में क्लासिफिकेशन है लेकिन वो सबके लिए है, उसमें से आप एक ले लो, उसको हम बोलते हैं कॉमन सर्विस, राइट. फिर उधर फूड स्टफ्स रहेंगे, मील्स वगैरह, जैसे थाली मिलती है खाने की, तो समझो सबके लिए कॉमन यदि है तो वो कॉमन सर्विस में आया. कॉमन सर्विस यदि दी आपने जो सभी कस्टमर को दी जाती है तो वो आता है सर्विस कॉस्टिंग में. और जो इंडिविजुअल सर्विस है जो आइडेंटिफाइबल उसी पेशेंट से है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं. कॉमन सर्विस यानी फूड सभी पेशेंट को एक साथ सर्व किया जाता है, भाई अकोमोडेशन सबके लिए है, लेकिन जो डॉक्टर फीस ले रहा है वो उस ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशन पे डिपेंड करता है और वो इंडिविजुअल चार्ज करता है, ये पेशेंट के ऑपरेशन की फीस इतनी, तो वो हो गया जॉब कॉस्टिंग. मेडिसिन वो स्पेसिफिक है, पर्सन टू पर्सन, यानी आप निकाल सकते कितने रुपए की मेडिसिन इस व्यक्ति के लिए लगी. पैथोलॉजी टेस्ट, तो कुछ चीजें स्पेसिफिक सर्विस टू दैट पेशेंट है और कुछ सर्विस कॉमन फॉर ऑल पेशेंट है. तो कॉमन सर्विस फॉर ऑल पेशेंट के लिए भी यूज सर्विस कॉस्टिंग, लेकिन उसमें मिक्सचर है, ये भी है प्लस ये भी है, तो यू हैव टू मेक यूज ऑफ जॉब कॉस्टिंग प्लस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यानी सर्विस कॉस्टिंग, तब जाके उसकी कॉस्ट निकल के आती है. यानी उसके तो सॉफ्टवेयर बन गए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के सॉफ्टवेयर बन गए तो हो जाता है, लेकिन सभी डिपार्टमेंट से उनको लिंक करना पड़ता है, तो सभी डिपार्टमेंट का डेटा क्लब करते और बना देते. पहले बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, अभी हॉस्पिटल ऐसे वैरायटी ऑफ हॉस्पिटल्स और बिग साइज हॉस्पिटल्स बन गए तो उन्होंने सॉफ्टवेयर भी लगा दिए. वैसे सॉफ्टवेयर का एक टेक्निकल नाम है, ये सभी सॉफ्टवेयर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करते हैं, आपने नाम सुना होगा इसका, ERP बोलते हैं, जनरल नेम, जेनरिक नेम है ना, ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर. फिर जो बनाने वाली कंपनी वो सॉफ्टवेयर को एक नाम भी देती है,
ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मुझे लगा आपको पता होगा टेक्नोलॉजिकल चीजें। ERP सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये जेनेरिक नाम है। फिर जो कंपनी जो सॉफ्टवेयर बना के देती है वो सॉफ्टवेयर का कोई नाम रख देती है। एक एग्जांपल दे देता हूं ना, बैंकिंग सॉफ्टवेयर में आजकल जो बैंक्स चलती हैं वो सब ERP प्लेटफॉर्म पे चलती हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, यानी रियल टाइम बेसिस पे सब अपडेशन, सब रिपोर्ट एक ही सॉफ्टवेयर में कंसोलिडेट होती है। तो इन्फोसिस का एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री। इन्फोसिस कंपनी आपको पता है, और उसका एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है फॉर बैंकिंग कंपनीज। तो इन्फोसिस ने उसको नाम दिया है, कुछ लोगों को तो पता होगा। वेरी गुड, फिनाकल। फिनाकल इज द नेम गिवन बाय इन्फोसिस टू अ सॉफ्टवेयर विच दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री। ERP का एक अभी नाम ले लिया मैंने मुंह से, तो जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, ERP का मतलब कुछ नहीं है। ERP इज अ नेम ऑफ अ सॉफ्टवेयर, but it is one software which takes care of all your needs. It's a well integrated software. यानी आपने एक बार ERP पैकेज लगा दिया, सॉफ्टवेयर लगा दिया, तो फिर और कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इंक्लूडेड इन वन सॉफ्टवेयर, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जो चीज की जरूरत है वो सब एक ही सॉफ्टवेयर में आपके काम की चीज आ गई। दैट इज कॉल्ड ERP। तो बना के देना पड़ता है हर ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बना के देना पड़ता है। एनीवे, तो जो सॉफ्टवेयर कंपनी ये सॉफ्टवेयर बना के देती है हर बैंक, हर इंश्योरेंस कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप चाहो तो एकेडमी का भी सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं ERP किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से। तो सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए ये हो गया जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि उनको हर एक के लिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर बना के देना है, उनके लिए जॉब हो गया। एनीवे, मैं बोल रहा था हॉस्पिटल में आजकल ERP सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो किसी कंपनी से खरीदते हैं सॉफ्टवेयर, तो उसमें सब ये रिपोर्ट्स अलग अलग डिपार्टमेंट की मर्ज करते हैं और फिर आपको बिल मिलता है, फिर वो सेटल होता है। थोड़ा टाइम लगता है उस प्रोसेस में। एनीवे, तो ये हो गया मल्टीपल कॉस्टिंग की बात कर रहा था मैं। एक और एग्जांपल देता हूं मल्टीपल कॉस्टिंग का। एक वर्ड यूज करूंगा जो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था मैंने पहले, असेंबली लाइन इंडस्ट्री। मैंने असेंबली वर्ड यूज किया था पहले, नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड असेंबली लाइन इंडस्ट्री। Assembly line industry is any such industry where components and parts are first manufactured and purchased, or manufactured or purchased, and then they are assembled together to manufacture a finished product. थोड़ा सा इमेजिनेशन हुआ, फिर एग्जांपल लेंगे। Any industry where lot of components and parts are manufactured oblique purchased, and then they are assembled together to manufacture a finished product. Any such industry is known as assembly line industry. All automobile industries, all automobile industry यानी टू व्हीलर बनाओ, थ्री व्हीलर बनाओ, फोर व्हीलर बनाओ, ट्रक बनाओ, टेम्पो बनाओ, कुछ भी बनाओ, all automobile industries are assembly line. इमेजिन करो टाटा मोटर्स को, थोड़ा इमेजिन करो, टाटा मोटर्स जो कार भी बनाती है, ट्रक्स बनाती है, बसेस बनाती है, उसमें कितने सारे पार्ट्स लगते होंगे। एक ट्रक, जैसे एक टाटा का एक छोटा ट्रक है 407 कोड वाला एक ट्रक है, बहुत पॉपुलर ट्रक है वो, मीडियम साइज वाला। यदि आपको उसके पार्ट्स गिनना है तो एक बार खोल लेना, उसको गिन लेना, वापस जोड़ देना। एनीवे, बीच बीच में मेरी आदत है ऐसा बोलने की, आपको समझ सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट से रिलेटेड और कौन सा प्रेशर लूज करने के लिए बीच बीच में है, समझ लिया करना। थोड़ी दिन में समझ जाएंगे आपकी व्यक्ति कैसा है, क्या क्या ध्यान में रखना और क्या छोड़ना है। एनीवे, कहने का मतलब उसमें थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स लगते हैं। अरे इतना काय को, आपके एक टू व्हीलर कभी घर पे खोल लेना, संडे को छुट्टी रहे तो, और गिन लेना, तो थाउजेंड्स ऑफ पार्ट टू व्हीलर में ही लग जाते हैं। अब इसमें से कुछ कंपोनेंट पार्ट्स वो खुद बनाते हैं, जैसे जनरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करती है, उसमें का जो मेन इंजन है और चेसिस यानी उस गाड़ी की बॉडी, उसको बोलते हैं चेसिस, इंजन और कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट पार्ट्स जो बहुत ही पेटेंटेड है, जो बाहर वाला बना के नहीं दे सकता, ये वो खुद बनाते हैं। बाकी सब कंपोनेंट पार्ट्स बाहर से खरीदते हैं, जैसे मिरर हो, विंडशील्ड हो, टायर हो, ट्यूब्स हो, स्पीडोमीटर हो, इलेक्ट्रिक वायर हो, केबल्स हो, वाइपर्स हो, क्या क्या नहीं लगता गाड़ी में, नट्स हो, बोल्ट्स हो, बहुत सारी चीजें लगती है, ये सब वो बाहर से बनवा के लेते। So some component parts, important component parts or critical component parts, they manufacture themselves, including engine, and other component parts they purchase from outside.
अब ये सब पार्ट्स रेडी हैं ऐसा समझो, अब उसको जोड़ेंगे तो ट्रक बनेगा। तो मैं जस्ट इमेजिन करने लगा रहा हूं आपको असेंबली लाइन इंडस्ट्री, फिर आपको कभी टाइम मिले तो यूट्यूब वगैरह पे सर्च मार के किसी की प्रोसेस देख लेना, अभी नहीं है क्लास में, हाँ कभी और फुर्सत में। असेंबली लाइन यानी ऐसी, इसको असेंबली लाइन बोलते समझो, ऐसा कन्वेयर बेल्ट है, इसके दोनों तरफ वर्कर्स खड़े हैं, दोनों तरफ ऐसे पूरे वर्कर्स हैं और उनके पास कंटेनर्स है, यानी बिन उसको बोलते हैं, जिसे हम डस्टबिन बोलते हैं ना, वैसे बिन्स यानी कंटेनर्स। तो कंटेनर में पार्ट्स है, और वर्कर यहां लाइन से खड़े हैं, ऐसे बहुत सारे वर्कर्स हैं, उनके पास कुछ टूल्स इक्विपमेंट्स हैं, और ये कन्वेयर बेल्ट पे चेसिस को रोल करते हैं। ट्रक की जो रॉ चेसिस रहती है जिसके ऊपर ट्रक बनता है, वो चेसिस यहां से रोल होती है। ये दोनों साइड के वर्कर, उनके पास कंपोनेंट पार्ट्स और टूल्स है, हैंड टूल्स, उससे वो एक एक पार्ट जोड़ते जाते हैं दोनों तरफ से, और ये चेसिस मूव हो रही है आगे, और दोनों तरफ के वर्कर्स उनको जो जो काम दिया है, कौन से पार्ट जोड़ना, किस यानी पहले क्या जुड़ेगा फिर क्या जुड़ेगा, वो पार्ट्स जुड़ते जाते हैं और ये चेसिस रोल होते जाती है। सब पार्ट जुड़ने के बाद एंड में द एंटायर ट्रक इज रेडी। चेसिस इज अ रॉ बॉडी। आपने कभी हाईवे पे चलते समय ऐसा देखा होगा कि कोई ड्राइवर, सिर्फ उसकी केबिन है और पूरा खाली ट्रक, नया का नया, कुछ भी नहीं है, वो जा रहा है, वो चेसिस है, राइट। तो चेसिस के ऊपर दोनों तरफ से कंपोनेंट पार्ट जोड़ दिए तो पूरा ट्रक रेडी हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? असेंबली लाइन। असेंबली लाइन इंडस्ट्री, वेयर कंपोनेंट पार्ट्स आर अटैच्ड, मींस असेंबल्ड एंड अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री। ऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर असेंबली लाइन इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग योर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में भी ढेर सारे पार्ट्स लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है उसमें, उसकी विंड स्क्रीन है, क्या क्या नहीं है उसके अंदर, ऊपर सॉरी विंड स्क्रीन बोल रहा हूँ, उसकी स्क्रीन है और उसके अंदर के पार्ट्स है। आपका कैलकुलेटर ले लो, वो भी असेंबल हुआ है, अलग अलग पार्ट्स। आपका लैपटॉप ले लो, राइट, वॉशिंग मशीन ले लो, टेलीविजन ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, ये सब कंपोनेंट पार्ट्स असेंबल होके बनने वाला प्रोडक्ट है, जिसको बोलते हैं असेंबली लाइन इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑटोमोबाइल, एंड यू कैन इमेजिन, राइट। तो सबका कुछ ना कुछ टाइप का ऐसा प्रोसेस रहता है, एंड देन वर्कर्स असेंबल द पार्ट्स एंड इट गेट्स मैन्युफैक्चर। सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थोड़े से कंपोनेंट पार्ट ज्यादा होने से उसकी असेंबली लाइन लंबी रहती है, लेकिन एक वॉशिंग मशीन रही तो वो यहीं पर 5 वर्कर खड़े रह के अपने अपने पार्ट्स असेंबल कर देंगे, यहीं की यहीं हो जाएगी, बन जाएगी शायद, क्योंकि इसमें पार्ट्स और कंपोनेंट्स कम है। और ये असेंबली लाइन इंडस्ट्री को जन्म देने वाला है हेनरी फोर्ड। नाम सुना होगा ना, फोर्ड मोटर्स जिसने फॉर्म की। तो हेनरी फोर्ड फर्स्ट केम आउट विद दिस असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट, और उससे प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो गया। दूसरी चेसिस रोल होती है, अपना काम चालू करते हैं, आगे गई, जब तक ये लोग वर्कर अपना अटैच कर रहे हैं, वो चलते जा रही, सब लोग अपना अपना काम करते जा रहे, अंदर चेसिस रोलिंग आउट, एंड यू विल फाइंड इन फ्यू मिनट्स वन ट्रक रोल्स आउट, फिनिश्ड प्रोडक्ट रोल्स आउट फ्रॉम द एंड ऑफ द असेंबली लाइन। अभी एग्जांपल क्यों दिया? असेंबली लाइन इंडस्ट्री के लिए यानी आपको टाटा मोटर्स और ट्रक बनाना है और ट्रक की कॉस्ट निकालना है। देखो कौन से मेथड से निकलती, इसमें से 7 में से। और जो ट्रक की भी बहुत वैरायटीज है उनके पास, यानी एक ही कंपनी में वैरायटी ऑफ ट्रक्स बनते हैं, टाइप ऑफ ट्रक्स, टाइप ऑफ कार्स, ये छोड़कर बोल दो इसमें से कौन सी एक मेथड से बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नैनो कार 1 मिनट में एक बनती, 5 साल लगते हैं, आपको लगता है उसको? प्रोसेस कॉस्टिंग में यू मैन्युफैक्चर ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर। अरे भाई आप क्या सोच रहे, टाटा मोटर्स एक ही 407 ट्रक ही बनाती पूरे साल भर में, आप सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग बोल कैसे रहे? उनकी तो कार कितने टाइप की है, वैरायटी ऑफ कार्स, वैरायटी ऑफ ट्रक्स, बसेस। सिंगल आउटपुट बोलने के पहले एक सोच लो, सिंगल आइडेंटिकल प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर, तो सिंगल आउटपुट, वो तो बहुत कम इंडस्ट्री में यूज होता है। मल्टीपल कॉस्टिंग यूज हो सकता है। अरे भाई इसीलिए तो वो एग्जांपल दिया था आपको एक। हाँ मैंने बोला इसके अलावा, तो आप बोल दे जा रहे, इसलिए तो आपको रोक के रखा था मैंने, छुपाया इसीलिए था कि इसके अलावा किसी एक मेथड जो आपको सूटेबल लगे। कहने का मतलब वो एक मेथड से काम नहीं होता है।
वैरायटी ऑफ व्हीकल्स आप बनाते हो, वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, उसमें से कुछ पार्ट खरीदते हो, कुछ पार्ट खुद बनाते हो। अब जैसे एक पिस्टन नाम का एक इंजन में पार्ट लगता है, वो पिस्टन को आप बैचेस में बनाते हो, तो वहां पर बैच कॉस्टिंग लगा के एक पिस्टन की कॉस्ट निकाल लो। इंजन शायद आप एक एक यदि बनाते होंगे तो जॉब कॉस्टिंग लगा लो, एक एक इंजन के लिए यदि एक एक बनाते होंगे, वो भी बैचेस में बनता होगा तो बैच कॉस्टिंग लगा लो। कुछ कंपोनेंट पार्ट्स प्रोसेस से बनते होंगे तो वहां प्रोसेस कॉस्टिंग लगाओ। एक्चुअली आपको अलग अलग टाइप के कंपोनेंट पार्ट्स के लिए अलग अलग मेथड यूज करनी पड़ेगी। पहले तो कंपोनेंट पार्ट्स की कॉस्ट पता चलेगी, कुछ पार्ट्स बाहर से खरीद लेंगे तो रेडीमेड कॉस्ट पता चल जाएगी, परचेस कॉस्ट। जैसे ट्रक टायर खरीद लिए, ट्यूब खरीद लिए, वाइपर्स खरीद लिए, बैक मिरर खरीद लिया, तो परचेस कॉस्ट इजीली मिल गई। जो आप मैन्युफैक्चर करते हो उसकी आपको या तो जॉब कॉस्टिंग से निकालनी पड़ेगी, या बैच कॉस्टिंग से, या प्रोसेस कॉस्टिंग से, पहले कंपोनेंट पार्ट्स की निकालनी पड़ेगी, और अब ये सबको जोड़ के फिर वो ट्रक की कॉस्ट निकलेगी। कहने का मतलब आप पूरी कंपनी में एक मेथड यूज कर सकते क्या? नहीं। एक्चुअली टाटा मोटर्स को बहुत पहले, जब मैं ICAA कर रहा था, कॉस्ट अकाउंटेंसी का कोर्स, तब मैंने विजिट किया था टाटा मोटर्स की फैक्ट्री को। तब उसका नाम टेल्को था। टेल्को पुराना नाम, अभी हो गया टाटा मोटर्स। टेल्को का फुल फॉर्म था टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, क्योंकि उनका प्लान था लोकोमोटिव इंजन बनाने का। फिर गवर्नमेंट ने बोला प्राइवेट वालों को हम देने वाले नहीं है काम, तो टाटा ने बोला नाम ही चेंज कर दो, तो टेल्को से नाम क्या चेंज करके कर दिया? टाटा मोटर्स ओनली। मैं बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, यानी अभी तो 25-30 साल पुरानी बात, अभी तो कितने चेंजेस हो गए होंगे वहां पर। लेकिन वहां पर ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, यानी उसको क्या नाम दिया था? अच्छे उन्होंने नाम दिया था, चलो अभी सही बोलते हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, ऐसे ही नाम समझते। तो हर एक डिपार्टमेंट वो अलग अलग काम करता था सिर्फ कंपोनेंट पार्ट्स बनाने का। तो एक डिपार्टमेंट में एक मेथड यूज हो रही है, दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरी मेथड, ऐसा करके, और कुछ परचेस करते, और फिर वो असेंबली लाइन पे वो ट्रक बनता है। तो एज ए टाटा मोटर्स कंपनी यू कैनॉट रिलाई ऑन वन मेथड, यू हैव टू मेक यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स, and therefore actually using multiple methods is called multiple costing। तो ये नाम का अलग चैप्टर तो नहीं है, लेकिन उसका मतलब आपको समझाया। नाउ दिस ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन वॉल्यूम 2। अब वॉल्यूम 3 पे भी ले चलता हूं ना। क्या नाम था उसका? टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। वेरी गुड। तो हम आते हैं टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग पे। That is volume 3, techniques of costing। In my opinion there are only 3 techniques of costing। फिर मैं इंस्टीट्यूट के ओपिनियन से भी ले चलूंगा कि इंस्टीट्यूट का और क्या क्या कहना है। तो पहले मेरा वाला डिस्कशन कर लेता हूं। टेक्निकली देयर आर ओनली 3 टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। वन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, another is marginal costing, and third one is budgetary control। बजट एंड बजटरी कंट्रोल भी बोल सकते हैं इसको। इनको पहले समझ लेते हैं। ये आपका वॉल्यूम 3 है, बजट एंड बजट, 3 प्रोमिनेंट टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। और एक बात, कल मैंने एक बोलते बोलते एक वर्ड यूज किया था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अरे 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हुआ था ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आप पढ़ते हैं 11th स्टैंडर्ड से। ये जो है ना, दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग, दिस वन। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का दूसरा नाम कॉस्ट अकाउंटिंग, वेयर योर ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन कॉस्ट, दैट्स ऑल, असर्टेन कॉस्ट। सभी जगह कॉस्टिंग का मतलब ही क्या है? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो ये है कॉस्ट अकाउंटिंग और ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें ऑब्जेक्टिव इज नॉट ascertainment of cost, इसमें ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन डूइंग देयर वर्क। तो ये मैनेजमेंट के काम की टेक्निक है, इसलिए इसको बुलाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग का दूसरा नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थर्ड ब्रांच। और आपके सिलेबस में दोनों इंक्लूड कर दिया, मैंने बताया नहीं क्या? न्यू सिलेबस में ये भी सीखना है और ये भी सीखना है, इसलिए उसको नाम क्या दिया? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ रहे क्या मेरी बात? ऐसा भी समझना इसको, दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग, दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इसको सीए फाइनल में और हायर लेवल पे पढ़ना है। ना
What exactly is this? Again, these are 3 different chapters also which we are going to study in volume 3. Don't worry. पहली मुलाकात करते हैं. Standard costing is a technique used for cost control. It's a technique used for cost control. यानी क्या? कॉस्ट को कंट्रोल में रखना जरूरी है क्या? नहीं है? जरूरी है. आप में से बहुत सारे लोग बाहर से आए यहाँ पढ़ने, घर से पैसे आएंगे खर्चा करने के लिए, इस खर्चे पे आपने कंट्रोल नहीं रखा तो क्या होगा? खर्चा बढ़ेगा. और किसी महीने पैसे नहीं आएंगे, वहां से फोन आएगा, बैक टू पवेलियन, आ जाओ घर पे, तुम पढ़ने लायक नहीं हो, हम जितना कमाते नहीं उससे ज्यादा तो तुम एक महीने में खर्चा कर लेते. ऐसा हो सकता है. तो खर्चा जितना जरूरी है उतना करना है. खर्चे पे क्या करना है? कंट्रोल रखना है. तो कंट्रोल करेंगे तो ही कंट्रोल में रहेगा. आपने उसको छोड़ दिया तो खर्चा बढ़ेगा. अब ये जो मैं आपके इंडिविजुअल लेवल के लिए बोल रहा था, वो यदि कॉर्पोरेट लेवल पे करना हो, बड़ी कंपनी के लेवल पे जहां करोड़ों रुपए में खर्चा होता है, तो आपको नहीं लगता खर्चे पे कंट्रोल करने के लिए कुछ सिस्टम होनी चाहिए? और वहां तो एम्प्लॉइज से काम करा रहे आप. अरे वहां कोई मालिक बैठ के काम कर रहा है क्या? मालिक तो आप और मैं भी हो सकते हैं, यानी शेयर होल्डर्स. क्यों नहीं? यू कैन ओन अ शेयर ऑफ L&T, नो? यू कैन ओन अ शेयर ऑफ टाटा मोटर्स ना. तो शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर इज अ ट्रू ओनर. इतना तो पता ही है ना आपको बैकग्राउंड में. तो आप कंपनी में जा रहे हैं क्या देखने रोज खर्चा कैसे हो रहा है? तो वहां कौन काम कर रहा है? एम्प्लॉइज. भले वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, है तो एम्प्लॉय. और बाकी अब देखो, मैं बड़े कॉर्पोरेट एंटिटी की बात कर रहा हूं जहां पर काम एम्प्लॉइज से करवाना है, लेकिन वो जो खर्चा करने वाले वो उनके जेब से नहीं होने वाला है. सीधी सी तो बात है. काम जो वो करेंगे वो उनको एक तो सैलरी देंगे वो अलग, प्लस काम करते समय जो भी खर्चा लगेगा. जब किसी एक एम्प्लॉय को आपको पुणे टू बैंगलोर भेजना है काम पे, कुछ काम से पुणे टू बैंगलोर भेजना है, और एम्प्लॉय को चॉइस दी जाए, तेरे को जैसा जाना हो चले जा, पुणे टू बैंगलोर, खर्चा कंपनी करेगी, खर्चा कंपनी करेंगे, तू चले जा, जहां रहना है वहां रहे, खर्चा कंपनी करेंगे. और मैं एम्प्लॉय हूं और मेरे बॉस ने बोला जैसे जाना है जा, सब खर्चा कंपनी करेगी, तू एम्प्लॉय है, कंपनी के काम से जा रहा है, तो मैं तो नेचुरली एयरलाइन से जाऊंगा कि मेरे जेब से थोड़ी हो रहा है. और बिजनेस क्लास से जाऊंगा, इकोनॉमी क्लास से क्यों जाऊं? बिजनेस क्लास में जरा लेग स्पेस ज्यादा मिलता है, बड़ी सीट रहती है, बराबर है. और उतरते से बढ़िया एसी टैक्सी लूंगा कि शेयर टैक्सी लूंगा? काय के लिए शेयर टैक्सी? खर्चा किसका? एसी टैक्सी, बड़ी वाली लग्जरी कार. उसको बोलूंगा मर्सिडीज होंगी तो भेज दे. और 5 स्टार देख होटल कौन सी मिलती बैंगलोर में. 7 स्टार रहे तो ज्यादा अच्छा है वैसे, लेकिन नहीं हो तो चलो 5 स्टार से काम चला लेंगे. ऐसे क्या गलत है? ये खर्चा किसके जेब से हो रहा है? अरे शेयर होल्डर, कंपनी है ने शेयर होल्डर, ओनर जो बैठे हैं दूर, वो खर्चा हो रहा है उधर. अब करो कैसे करते कंट्रोल? और इस पे यदि कोई कंट्रोल रखा ही नहीं तुमने तो फिर उसको बोलते हैं ना वाट लग गई. तो जो एम्प्लॉय खर्चा करने वाला उसके जेब से लगने वाला नहीं है वो पैसा, पैसा लगने वाला है कंपनी का, और उस पर आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर हो गया. तो दोस्तों खर्चे पे कंट्रोल रखने के लिए कुछ तरीका तो होगा, कुछ टेक्निक तो लगानी पड़ेगी. दोस्तों वही टेक्निक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो और डिटेल में पढ़ेंगे हम. ब्रीफ में बताना है वो हर एक्टिविटी का या हर काम का खर्चा कितना लगना चाहिए, ये पहले कैलकुलेट किया जाता है. टॉप मैनेज, ये सब टॉप मैनेजमेंट के काम की चीजें, लोअर लेवल पे नहीं. टॉप मैनेजमेंट को लोअर लेवल पे कैसे कंट्रोल रखना उसकी तरीके है, इसीलिए इसका नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग है. तो हर चीज पे खर्चा कितना लगना चाहिए वो पहले कैलकुलेट कर लेते, एस्टिमेट कर लेते, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्ट. क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी कितना खर्चा लगना चाहिए था. और जब एक्चुअल खर्चा होता है तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से वो इंफॉर्मेशन लेते कि एक्चुअल खर्चा कितना लगा. मैं ब्रीफ बता रहा हूं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, एक झलक सिर्फ कि स्टैंडर्ड खर्चा कितना लगना चाहिए था. अब अपन छोड़ो इमेजिनरी बात की जगह ऐसे इस पे आ जाते हैं. ये पेन मैन्युफैक्चर करना है हमको, तो हमने ये सोचना है कि इस पे खर्चा लगना कितना चाहिए था.
तो कंपनी ने स्टैंडर्ड सेट किया कि 25 रुपीज में ये एक पीस बनना चाहिए था, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये 25 रुपीज क्या भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। और जब एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ तो पता चला खर्चा लगा 32 रुपीज पर पीस, जबकि लगना कितना चाहिए था, 25। सो यू कंपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट विथ एक्चुअल कॉस्ट टू फाइंड आउट द वेरिएशन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। और ये वेरिएशन यदि ज्यादा मिला, स्टैंडर्ड से खर्चा एक्चुअल ज्यादा लगा, तो फिर वो जो कंसर्न ऑफिसर है ना, जैसे प्रोडक्शन के केस में प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार है, तो प्रोडक्शन मैनेजर का गला पकड़ा जाएगा, ए भाई ये 25 रुपए में बनना चाहिए था पेन, 32 रुपीज कहां गए, यानी एक्स्ट्रा कितने लगे, 7 रुपीज। वो एक्स्ट्रा 7 रुपीज को शॉर्ट में बुलाते हैं एडवर्स वेरिएंस। वेरिएशन इन कॉस्ट, वेरिएशन यानी वेरिएशन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट, वो वेरिएशन को बुलाते हैं वेरिएंस। और एडवर्स वेरिएंस यानी पैसे ज्यादा लगे तो ये एडवर्स हुआ, और 25 रुपीज की जगह 23 लगे रहते तो वेरिएशन तो अभी भी है 2 रुपए का। 25 रुपीज लगना चाहिए था स्टैंडर्ड खर्चा, और एक्चुअल लगा 23। अरे तो पैसे बचाए तुमने, तो ये भी वेरिएशन है 2 रुपए, लेकिन ये हुए फेवरेबल वेरिएशन, तो उसको बोलते हैं फेवरेबल वेरिएंस। फेवरेबल वेरिएंस और एडवर्स वेरिएंस, वेरिएशन को वेरिएंस बोलते हैं। तो एडवर्स वेरिएंस और फेवरेबल वेरिएंस, तो फेवरेबल वेरिएंस रहा तो उसको शाबाशी दो कि तूने कॉस्ट सेव की, उसमें से तेरे को बोनस देंगे हम कुछ जो तूने बचाया कंपनी के लिए। और एडवर्स वेरिएशन रहा तो वार्निंग देंगे, और 2 बार एडवर्स, 3 बार एडवर्स, चौथी बार उसको घर। अरे ऐसा नहीं करेंगे तो कंपनी कैसे चलेंगी, टॉप मैनेजमेंट कंपनी चलाएंगी कैसे। और यही प्रॉब्लम, ये सब टेक्निक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लगती, और इसीलिए वहां लफड़े हैं। कोई भी काम एफिशिएंसी से होता नहीं, वहां टाइम भी 10 गुना ज्यादा लगता है और पैसे भी लगते हैं। इसलिए आपने देखा होगा मेजॉरिटी गवर्नमेंट कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रन इन लॉसेस बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल। क्योंकि गवर्नमेंट की ओनरशिप है ना, किसकी ओनरशिप, आप और हम ना, पब्लिक। इसलिए उनको पब्लिक एंटरप्राइजेस भी बोलते हैं ना, पब्लिक एंटरप्राइजेस बोलते हैं ना गवर्नमेंट कंपनी को, उसका दूसरा नाम है पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी पब्लिक की गवर्नमेंट पब्लिक की है और कंपनी गवर्नमेंट की यानी पब्लिक की है। और पब्लिक आप और मैं है, जनता। अपन एक बार इलेक्शन में चुन के देने के बाद उसके आगे कुछ नहीं करते, बोलने के लिए सत्ता अपने हाथ में है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कुछ भी नहीं अपने हाथ में। और वो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में काम करने वाले एम्प्लॉय, वो उनको क्या बोलते हैं हम, गवर्नमेंट सर्वेंट। हाँ, पब्लिक सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट। वो उसका बॉस भी रहे, कोई भी रहे, उसको क्या फर्क पड़ता है, बोले खर्चा ज्यादा लगे या कम लगे, किसका लग रहा है, गवर्नमेंट का, यानी किसका लग रहा है, पब्लिक का। मेरे जेब से क्या जा रहा है, मेरे को क्या करना है। तो सब जगह काम ऐसे ही है, इनएफिशिएंट काम है, और इसीलिए गवर्नमेंट कंपनीज लॉस में चलती है। उसका कारण ये, वहां ये लगाते ही नहीं। और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में फटाक, एक मौका देंगे गलती हुई तो दूसरा देंगे सुधरने का, उसके बाद नहीं देंगे। आपका मोबाइल बजने दो क्लास में, एक बार वार्निंग दूंगा, दूसरी बार बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दूंगा, तीसरी बार गेट आउट। तो बोलेगा मेरा बाप कमिश्नर है, होगा, उससे पढ़ ले। क्या करेंगे, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक बात बताइए, आपको नेचर है सबका। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली और प्रॉफिटेबली चलते हैं। अब आपके ध्यान में आऊंगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक क्या है। इट इज यूज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू कीप कंट्रोल ओवर द कॉस्ट। कि भाई हमने जो प्लान किया वैसे चलो, वेरिएशन हो सकता है लेकिन वो एक्सेप्टेबल, यानी स्टैंडर्ड से थोड़ा इधर उधर हो सकता है। स्मॉल वेरिएशन इज एक्सेप्टेबल, बट ह्यूज वेरिएशन नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब यहां ले चलता हूं थोड़ा सा बजट पे, फिर मार्जिनल पे लाता हूं। बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट इज अ टूल फॉर डूइंग फ्यूचर प्लानिंग। सबसे पहले गवर्नमेंट का हर साल बजट आता है ना, ये बजट जो साल चला गया उसके लिए आता है क्या? अरे ऐसे ही तो है ना? नहीं नहीं नहीं, बजट शायद आने वाले साल के लिए बनाया जाता है। So budget is a tool for doing planning, and planning is always done for future. You have to learn from the past and plan for the future based on past experience. So it's a planning tool. It's a tool for planning.
फ्यूचर प्लानिंग नेचुरली। दोस्तों बजट के बारे में भी थोड़ी थोड़ी मुलाकात करते हैं। बिना बजट बनाए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता, ऐसा मेरा कहना है, चल ही नहीं सकता। जैसे फिर से मैं टाटा मोटर्स पे ले चलता आपको। आपको नहीं लगता उनको अगले साल का एक सेल्स बजट पहले बनाना पड़ेगा कि कितनी गाड़ियां बिक सकती हैं? एस्टीमेट, और कितनी बिकेंगी अलग बात है एक्चुअली, लेकिन बजट तो बनाएंगे क्योंकि सेल्स मैनेजर को टारगेट तो रहेगा कि भैया इतनी गाड़ियां बेचना है। फिर कितनी बिकेगी उसके हिसाब से शायद प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, प्रोडक्शन किए बगैर बिक जाएंगी क्या? तो आपको कुछ तो टारगेट देना पड़ेगा ना कि आपको इतनी गाड़ियां बेचना है, और इतनी बेचना है तो फिर इतनी मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, और यदि इतनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर होंगी तो उसके लिए कितने कंपोनेंट पार्ट्स या तो खरीदने पड़ेंगे या मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, और इतना प्रोडक्शन करने के लिए कितने वर्कर लगेंगे, कितनी प्लांट एंड मशीनरी लगेगी, ये सबका कुछ एस्टिमेशन करना पड़ेगा कि ऐसे ही हो जाएगा काम अपने आप? इसको एस्टिमेशन करेंगे, प्लानिंग करेंगे क्या अपने आप ही हो जाता है सब काम? यानी परचेस मैनेजर को जो अच्छा लग रहा है खरीद रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर को जो अच्छा लग रहा है बना रहा है, जब नहीं मर्जी है मेरे को आज नहीं घर पे रहना है, मेरे को नहीं बना रहा हूं, मेरा बर्थडे आज नहीं बनाता मैं, ऐसा है क्या? ऐसा कंपनी चलती है कैसे? यानी हर एक चीज का प्लानिंग नहीं होगा। ईयरली बजट बनेगा, ईयरली बजट इज ब्रोकन डाउन टू क्वार्टरली बजट, क्वार्टरली टारगेट्स है, बजट यानी टारगेट इनडायरेक्टली, क्वार्टरली टारगेट्स आर ब्रोकन डाउन टू मंथली, और मंथली आर ब्रोकन डाउन टू डेली। माय डियर फ्रेंड्स, डेली प्रोडक्शन मैनेजर को टारगेट दिया जाता है, आज इतना प्रोडक्शन करना है, उसके बगैर प्लानिंग ही नहीं हो सकता। एक छोटा सा कार्यक्रम करना है, समझो शादी है किसी की, शादियों का सीजन चल रहा है, तो आपको केटरर को कुछ बोलना पड़ता है, कितने गेस्ट आएंगे, तो मन में उतने बोल देते क्या? क्या करते हैं हम? गेस्ट की लिस्ट बनती है, उसमें प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है कि कितने परसेंट लोग आते हैं, कितने नहीं आते हैं, कितने एकदम कंफर्म गेस्ट है जिन्होंने कंफर्म कर दिया हम आने वाले हैं। कुछ तो अंदाज देंगे उसको केटरर को, आप उसको अंदाज देंगे तो फिर उसके हिसाब से रॉ मटेरियल आएगा। ऐसा नहीं लगता आपको? अरे कितने इन्विटेशन कार्ड प्रिंट कराना है, यदि फिजिकली भेजना है तो कितने प्रिंट कराना है, सब चीज का बजट बनता है, सब चीज का प्लानिंग होता है। तो कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा दोस्तों। मेरा कहना है बजट बनाए सिवाय, यानी फ्यूचर प्लानिंग के सिवाय कुछ भी काम नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजेशन में, और हुआ तो तरीके से नहीं होगा, तरीके से नहीं होगा, कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं होगा। सबने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। रॉ मटेरियल खरीदने वाले ने, परचेस मैनेजर ने बराबर रॉ मटेरियल खरीदना है जिससे प्रोडक्शन हो, यानी प्रोडक्शन वाले को कितनी जरूरत है रॉ मटेरियल की, उतना खरीद के देने की जिम्मेदारी परचेस मैनेजर की। प्रोडक्शन मैनेजर ने उतने फिनिश गुड्स बना के देना है जो सेल्स मैनेजर को बेचना है। ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो डिपेंडेंट है तो इसका कुछ प्लान ऑफ एक्शन तो बनाओ, फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन। वो फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन को ही तो बजट है दोस्तों। अरे आपने भी जब 12th स्टैंडर्ड में कदम रखा तो कुछ तो सोचा लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, कुछ प्लान ऑफ एक्शन सोचा, तभी इंटरमीडिएट तक पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? तो दैट प्लान ऑफ एक्शन, फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन, यानी टाइम टेबल, how we will move in future, what we will produce, what we will sell, at what price we will manufacture, at what price we will sell, how much profit we expect to earn in future is a budget, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बनाती है। पैसे कितने मिलेंगे, रेवेन्यू कितना कलेक्ट होगा फ्यूचर में, कहां से होगा, और हम उसको खर्चा कैसे करेंगे, ये फाइनेंस मिनिस्टर बजट में प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में कि ऐसा पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास और ऐसे जाएगा। ये पूरे फ्यूचर का प्लानिंग है, एक साल का, वो प्लानिंग को तो बजट बोलते हैं। तो ये बजट सबको बनाना पड़ता है। लेकिन आपको लगता है ये बजट वो जो वर्कर जो काम कर रहा है फैक्ट्री में उसके काम का है ये, यानी उसके काम का है, उसकी कैपेसिटी में है कि वो पूरे कंपनी का बजट बना ले सोच के? यानी ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। टॉप मैनेजमेंट को पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करने पड़ते हैं और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लान बनाना पड़ता है, फ्यूचर प्लान, और फिर उस प्लान पे बाकी लोगों को चलना पड़ता है। ये सब मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? ये सभी टेक्निक्स टॉप मैनेजमेंट के काम की है। ये टॉप मैनेजमेंट, ये उससे नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और एक्चुअल काम करने वाले और लोअर लेवल वाले वर्कर्स, जो जिनको एक्चुअल, उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन सुनना है। सुपरवाइजर ने बोला ऐसा कर, उसने कर देना, उसको दिमाग नहीं लगाना है, उसको काम करके देना है। ये प्लानिंग वाले लोग हैं टॉप मैनेजमेंट, इसलिए तो उसका नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना दोस्तों, मैनेजमेंट के काम की चीज है। तो ये हो गया आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल, जो हम और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक मार्जिनल कॉस्टिंग, इट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में जो भी डिसीजन लेने पड़ते हैं
मैंने एक एग्जाम्पल दिया था यदि आपको याद हो तो, मेक और बाय, मेक और बाय, टायर का दिया था ना, टायर में खुद बनाओ क्या खरीदूं, ये भी एक डिसीजन है। अरे एक डिसीजन तो अभी भी आप में से कुछ लोगों का लेना बाकी है। कुछ लोगों ने ले लिया है, कुछ लोगों ने ले लिया ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, कुछ लोग सोच रहे हैं अभी बीसीए करूं क्या नहीं, कोचिंग लगाऊं क्या नहीं, लगाऊं तो किसके यहाँ लगाऊं, तो अभी भी डिसीजन पेंडिंग ही है। तो दोस्तों डिसीजन मेकिंग में जो टेक्निक मदद करती है उसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, विच हेल्प्स मैनेजमेंट टू टेक वैरायटी ऑफ बिजनेस डिसीजन। रोज ही उनका काम ही, टॉप मैनेजमेंट का काम ही रोज डिसीजन मेकिंग है। अब भाई सिंपल काम मैं बनाऊं क्या, बाहर दे दूं, आउटसोर्स कर दूं, बाहर से खरीद लूं, राइट या कोई काम में लॉस हो रहा है तो इसको चलने दूं क्या, रोक दूं। आप बोलेंगे लॉस हो रहा है तो बंद करो, इतना आसान नहीं है डिसीजन ना, हम पढ़ेंगे, राइट। यानी कभी कभी कुछ लॉस मेकिंग काम या एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने में ज्यादा फायदा रहता है क्योंकि उससे दूसरे और कनेक्टेड चीजें रहती है, तो सब एंगल से सोचना पड़ता है, राइट, कि वो काम करना है नहीं। तो हर पग पे आपको डिसीजन लेना है, बिजनेस डिसीजंस लेना है। अरे भाई कार का नया मॉडल लॉन्च करना है या नहीं करना है, या कितने मॉडल लॉन्च करना है इस साल में, या अभी भी हमने वो डीजल इंजन वाली कार बनाना है या सिर्फ पेट्रोल वाली बनाना है। शायद ऑटोमोबाइल कंपनी ने, कुछ लोगों ने लिया कि डीजल वाली कार अब बना के कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहले डीजल और पेट्रोल के रेट में बहुत ज्यादा फर्क हुआ करता था। एग्जाम्पल के लिए डबल का, यानी डीजल यदि 50 रुपए लीटर यानी 30 रुपए लीटर मिलता था तो पेट्रोल 60, एग्जाम्पल, हाँ, इतना फर्क था काय में, डीजल और पेट्रोल इंजन में। गवर्नमेंट ने फर्क ही खत्म कर दिया। गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल की प्राइस को इतना पास पास लिया है कि अब डीजल की गाड़ी बनाने में कोई मैटर ही नहीं रहा। पहले डीजल की गाड़ी इसलिए बनती थी कि उसमें कॉस्ट सेविंग होता था, फ्यूल का कॉस्ट बचता था, इसलिए, क्योंकि डीजल इंजन महंगा आता है, डीजल गाड़ी महंगी आती है, लेकिन वो वहां सेव होता था पैसा। अभी वो नैरो कर दिया एकदम, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बचा। लेकिन पेट्रोल की गाड़ी एफिशिएंट ज्यादा होती है, पेट्रोल व्हीकल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल। तो बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनी को ये निर्णय लेना पड़ रहा है कि डीजल गाड़ी बना के कोई फायदा ही नहीं। और तो और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ रहा है, राइट। अवर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इज प्रमोटिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स, ईवीज बोलते हैं ना हम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो फ्यूचर इज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो बहुत सारी बड़ी कंपनी को यह भी सोचना पड़ेगा कि शायद ये पेट्रोल इंजन वाली भी गाड़ी बंद करनी पड़ेगी, उसको इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं, उसका जो टेक्नोलॉजी उसको इंटरनल कंबशन इंजन। एनीवे मुझे नहीं कहीं तो भी सुना तो बोल दिया, चिपका दिया आपको, राइट, लेकिन वो करेक्ट नाम है इंटरनल कंबशन इंजन। इंजन वाली गाड़ी, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो इंजन ही नहीं है कि उसने कोई फ्यूल लेके और वो इंजन को घुमाना ही नहीं है, वो इलेक्ट्रिक पे, पावर पे चलती है, उसमें बैटरी का खर्चा मेन है। तो बहुत सारी कंपनी सोच रही, शुड वी शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, शुड वी क्लोज डाउन दिस। ये क्या है, डिसीजन है, एंड इफ यू वांट टू डू इट हाउ। फिर धीरे धीरे ये पेट्रोल डीजल के इंजन वाली गाड़ियों का प्रोडक्शन कम करो, फिर एक कोई और जगह खरीद लो, इसका प्लांट लगाओ, किसका, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसमें मेन कॉस्ट 50% कॉस्ट तो बैटरी की है, तो या तो बैटरी हम बनाएंगे या फिर कहीं से अच्छी एफिशिएंट बैटरी सस्ती वाली मिलती क्या वो लेंगे। कुछ तो सोचना पड़ेगा कंपनी को आगे चलाने के लिए, और कुछ नहीं किया, डिसीजन ही नहीं लिया, तो बस 2 साल में कंपनी बंद हो जाएगी, तुम भी घर जाओ, मैं भी घर जाता। ये सब डिसीजन लेने में जो मदद करती है वो टेक्निक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। थोड़ा सा अंदाज आया होगा आपको, राइट। ये एक्चुअली सीए फाइनल का सिलेबस है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने बोला कि ट्रेलर यहीं से दिखवा के पहुंचाओ तो स्टूडेंट्स को पता रहे फाइनल में जाना है क्या नहीं। शायद ये इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव होगा कि थोड़ी पहचान करा दो यहाँ, तो बच्चा सोच लेगा कि ये पढ़ना और हायर लेवल पे जाऊं क्या नहीं सीए फाइनल में, कि अपन यहीं से बाय बाय टाटा। एनीवे, कुछ कुछ मजाक में भी बोल दिया। ये मेरे हिसाब से 3 ही टेक्निक है कॉस्टिंग की, लेकिन कुछ चीजें मुझे मजबूरी में बोलनी पड़ती है और मैं ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूं, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। देर आर फ्यू क्वेश्चंस which has got 3 answers. There will be few questions in CA Institute syllabus or in the exams which will have 3 answers. Those 3 answers are, one is correct answer, one is wrong answer, and one is ICAI answer.
इंग्लिश समझी? जिनको समझी उनके चेहरे पे हंसी आ गई। Sometimes a question can have 3 आंसर, करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर एंड ICAI आंसर। ये बहुत माइल्ड लैंग्वेज में बोल रहा है, इसका मतलब भी था बोलने का कि ICAI आंसर मे नॉट बी अ करेक्ट आंसर, ऐसा इनडायरेक्टली बोलना था मुझे। वो अलग ही चलती इंस्टीट्यूट अपने, कभी कभी कुछ जगह पर हमको भी पढ़ाते समय ऐसे ही पढ़ाना पड़ता कभी कभी कि ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लिखा है इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि आप पूछेंगे इसका लॉजिक बताओ, मैं वो टीचर हूं जो हर चीज को लॉजिक से पढ़ाएगा, क्योंकि मुझे परमानेंटली पढ़ाना है, मुझे टेम्पररी रटवा के नहीं भेजना है आपको कि ये रट के चला जा और पास हो जा, होने वाला नहीं। पहली बात तो ये काम, ये बीकॉम एग्जाम है ही नहीं। अब लॉजिक से पढ़ाना है, लेकिन कोई चीज मेरे लॉजिक को ही नहीं बैठ रही है, मैं उसका लॉजिक आपको दे ही नहीं सकता क्योंकि वो गलत है, लेकिन लिखा है मॉड्यूल में। अब मॉड्यूल है बाइबल, गीता, कुरान, ऐसे ही है ना। लोग मॉड्यूल को क्या समझते हैं, बाइबल, गीता, कुरान। उसकी जरा मैंने बोला था ना, वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट कॉर्नर में देखना, मैंने लिस्ट बना के रखी एरर्स की जो इंस्टीट्यूट को भेजी, इतनी सारी गलतियां उसमें, लेकिन वो बाइबल, गीता, कुरान उसमें लिखा है तो सर लिखा है, तो मेरे को भी ऐसे ही बोलना पड़ता, मॉड्यूल में लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूं। एग्जाम में आए तो ही लिख देना कौन सा मॉड्यूल वाला, क्यों, मार्क्स चाहिए। क्यों लिखा है मुझसे मत पूछना, उधर पूछो, कहां, बोर्ड ऑफ स्टडीज को, उसका ईमेल आईडी आपके मॉड्यूल में पहले पेज पे रहता है, बैक पेज पे और पहले पेज में अंदर रहता है, उनका ईमेल आईडी, उनको लिखो। जवाब मिलेगा नहीं, लेकिन लिखो, हाँ लेकिन लिखो। तो टेक्निक 3 है, शायद 2-3 और इंस्टीट्यूट ने लिखी मॉड्यूल में। तो यदि इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, तो पूरी लिस्ट लिख देना भैया, मार्क्स मिलाने के लिए। मैं देख लेता हूं, उन्होंने 2-3 और ऐड कर दी उसमें टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में, मैं वो भी बता देता हूं, मीनिंग बताऊंगा उसका, लेकिन मेरे हिसाब से वो टेक्निक नहीं है। हाँ, तो सिर्फ इंस्टीट्यूट ने लिखा है, करके पढ़ा रहा हूं। ऐसी कुछ जगह पर मुझे सब बोलना ही पड़ेगा, कुछ इलाज ही नहीं है, क्या करें। पेज नंबर 6, जिनके पास नोट्स है, बराबर है, 6 टेक्निक है, 3 एक्चुअल जो मेरे हिसाब से करेक्ट है, और 3 और इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो भी करेक्ट है। So these 3 techniques are written by institute also and by me also. I agree with this. 3 more which institute के हिसाब से correct है, not according to me. तो 3 और वर्ड, पेज नंबर 6 पे देखो वाला दोस्तों, क्या क्या वर्ड मिल गए। कौन सा एक, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये गलत है करके। हाँ, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, क्या पगले लोग है साले, ऑन द रिकॉर्ड। हाँ, गाली मारना तो खुल के मारना, अपने को कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है ना, राइट ऑफ स्पीच। गलत है तो गलत ही बोलने का क्या है, अब वो अंधा है तो अंधा ही बोलेगा ना तेरे को मैं। हाँ, और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, तो 6 के 6 लिख देने के, पूरे मार्क्स फुल। अब मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा, इसका मीनिंग समझाऊंगा मैं, राइट। वो नाम है लेकिन वो टेक्निक में नहीं डालना चाहिए था, किसने, इंस्टीट्यूट, ठीक है। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ब्रीफ में समझ लेना, क्योंकि इससे ज्यादा वो है भी नहीं कहीं पर और लिखा भी नहीं है, और आपके सिलेबस में भी नहीं है वैसे। सी, डिफरेंट कंपनीज may follow a different approach of ascertainment of cost. एक्चुअली स्टेज पे आप कितना इमेजिन कर पाएंगे वो भी चेक करें, फिर भी कोशिश करता हूं मैं, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है 5, A, B, C, D, E, सभी 5 कंपनी सीमेंट बनाती है और उसी क्वालिटी का सीमेंट बनाती है। क्वालिटी सबकी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सबका अपना अपना ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम तो सबका अलग रहेगा। अब ये 5 कंपनी को कंपैरिजन करना है आपस में कि भाई तुम्हारी कॉस्ट कितनी है, हमारी कितनी है। इससे क्या पता चलेगा कि कौन एफिशिएंट है, कॉस्ट कंपेयर कर रहे हैं आप कि भाई दूसरी कंपनी यदि वही क्वालिटी का सीमेंट कम कॉस्ट में बना सकती है तो यार फिर हम में कुछ गड़बड़ है, फिर तो हमको कहीं इंप्रूवमेंट करना है। तो पर्पस है कि कंपैरिजन करके, इसको कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, उसका भी टेक्निकल नाम है, क्या है, इंटर फर्म कंपैरिजन। आप सुनते हो ना इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट मैचेस, यानी जब एक कॉलेज दूसरे कॉलेज से कहता है तो एक कंपनी यानी फर्म, ऐसा बोलते हैं। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब एक फर्म का कंपैरिजन दूसरे फर्म से। फर्म का मतलब यहां पर सिर्फ पार्टनरशिप फर्म मत समझना, फर्म यानी ऑर्गेनाइजेशन।
तो जब आपस में एक कंपनी दूसरे कंपनी से कंपेयर करती है तो उसको कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। और जो कंपनी को ये इंटर फर्म कंपैरिजन करना है, अच्छा पहली बात क्यों करना है, इसका पर्पस क्या है कि आपको एक दूसरे से सीखना है कि कौन कहां सही है, कौन कहां गलत है, कौन अच्छा काम कर रहा है। भाई किसी की मटेरियल कॉस्ट कम हो सकती है सीमेंट बनाने की, किसी कंपनी की लेबर कॉस्ट कम हो सकती है, यानी वो लेबर में ज्यादा एफिशिएंट है, किसी कंपनी में ओवरहेड्स कम लगते हैं, राइट, कोई कंपनी का प्रोडक्शन का स्पीड ज्यादा है, जो भी है आपको ये समझना है, एक दूसरे को एक दूसरे से समझ के उसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट लेना है, सभी की एफिशिएंसी बढ़ाना है, ये उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव है। लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड एवरीबॉडीज परफॉर्मेंस शुड इंप्रूव, दिस इज द फाइनल ऑब्जेक्टिव। उसके लिए आपको इंटर फर्म कंपैरिजन करना है। तो ये पांचों का कॉस्ट का डेटा कंपेयर करना है। मैं बहुत कंसेप्चुअली समझा रहा हूं, उसमें तो बुक की डेफिनेशन लिखी हो, छोड़ दो। तो ये पांचों का डेटा कंपेयर करना है, तो एक कंपेरेबल तो होना चाहिए डेटा। जैसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपके ग्रुप 2 में है, उसमें कहते हैं कभी भी किसी का परफॉर्मेंस कंपेयर करना हो तो कंपेयर एप्पल्स विथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विथ ऑरेंजेस। ये पॉपुलर प्रोवर्ब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बोलने का तरीका है ना, कंपेयर एप्पल विथ एप्पल्स एंड कंपेयर ऑरेंजेस विथ ऑरेंजेस। डोंट कंपेयर एप्पल्स विथ ऑरेंजेस, क्योंकि कंपैरिजन ही गलत है, क्योंकि ये कंपैरिजन ही गलत है। तो ये पांचों फर्म सीमेंट ही बनाती है, इनका कंपैरिजन करना है पता करने के लिए कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है, कौन कम है और कहां स्कोप है इंप्रूवमेंट का। तो इनका पहले डेटा कंपेरेबल करो। अब डेटा कंपेरेबल करो यानी पांचों प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं, क्योंकि सीमेंट इज अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। लेकिन इनके कॉस्ट कैलकुलेशन के तरीके में बहुत जगह पर डिफरेंस हो सकता है। कॉस्ट में तो डिफरेंस आएगा, मैं कॉस्ट में डिफरेंस आएगा की बात नहीं कर रहा, कॉस्ट कैलकुलेट करने के तरीके में डिफरेंस है। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन पे ले सकता हूं, कुछ चीजें तो आपको पता है, स्टॉक वैल्यूएशन की कुछ मेथड्स है जो AS2 में पढ़ी है आपने। फीफो लीफो एवरेज पढ़ाऊंगा ना कुछ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्या सभी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है? नहीं ना, एवरेज मेथड। दोस्तों ये मेथड ऑफ वैल्यूएशन बदल दी ना तो प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट बदलती है। डेप्रिसिएशन की करीबन 10 मेथड है फाउंडेशन में, एक तो स्ट्रेट लाइन और WDV तो है ही है, मशीन आवर रेट मेथड, डिप्लीशन मेथड, वो एक रिपेयर्स प्रोविजन मेथड, एन्युटी मेथड, कुछ तो भी है ना, ऐसी बहुत सारी है ना। अब आपको लगता है यदि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा है डेप्रिसिएशन की और एक ऑर्गेनाइजेशन WDV, तो आपको नहीं लगता इनके कॉस्ट कैलकुलेशन के तरीके में फर्क होगा? अरे होगा ही ना, क्योंकि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग है। हम जब लेबर कॉस्ट टॉपिक में जाएंगे तो लेबर को वेजेस देने के तरीके हैं, देयर आर मेथड्स बाय विच यू कैन रेम्यूनरेट द वर्कर्स। दो मेथड तो मैंने भी रेफरेंस दी थी, पीस रेट और टाइम रेट। कुछ याद आ रहा है क्या जो लोग प्रेजेंट थे? यानी नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस के बेसिस पे या टाइम स्पेंट इन द फैक्ट्री के बेसिस पे। और भी मेथड पढ़ना है हमको वो लेबर कॉस्ट टॉपिक में। तो समझो 5 मेथड है लेबर को पेमेंट करने की, और ये सब लोग अलग अलग मेथड से पेमेंट कर रहे हैं। फिर एक ओवरहेड्स टॉपिक, ओवरहेड्स नाम का चैप्टर तो है, मैं बोल रहा हूं समझ में नहीं आएगा। ओवरहेड एब्सॉर्ब करने के, ओवरहेड्स प्रोडक्ट को चार्ज करने के अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड्स है। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग मेथड यूज कर रही है, ऐसा समझो। समझ में नहीं आया तुम्हारे, लेकिन बता रहा हूं ऐसे। तो ये तरीके अलग अलग होने से इनका कॉस्ट कैलकुलेशन अलग अलग आएगा, तो कॉस्ट कंपेरेबल ही नहीं रहेगी। कॉस्ट कंपेरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि कॉस्ट कैलकुलेशन करने का तरीका यूनिफॉर्म नहीं है। वहां से कुछ घंटी बजी, अभी नहीं बजी। कॉस्ट कंपेरेबल नहीं है, कंपैरिजन करना है, इंटरफर्म कंपैरिजन करना है, लेकिन सबका कॉस्ट कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग है, इसलिए कॉस्ट कंपेरेबल नहीं है। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं कॉस्ट सेम नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका सेम नहीं है। तो एक काम करो, आपको यदि लॉजिकल कंपैरिजन करना हो एक दूसरे से, तो पहले कॉस्ट कैलकुलेशन का एक तरीका डिसाइड करो पांचों के लिए। यानी भाई पांचों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से ही स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे, पांचों स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पांचों कंपनी फिर पीस रेट मेथड से ही लेबर को पेमेंट करेगी। और ओवरहेड्स में समझो पांचों, बोल रहा हूं कुछ कि ओवरहेड्स में सभी लोग डिपार्टमेंटल रेट मेथड से ओवरहेड चार्ज करेंगे, ये पढ़ना है। हाँ, डिपार्टमेंटल रेट मेथड, इससे ओवरहेड चार्ज करेंगे। तो आपको सबका तरीका यूनिफॉर्म करना पड़ेगा, कॉस्ट कैलकुलेशन करने का तरीका यूनिफॉर्म करना पड़ेगा, फिर वो डेटा कंपेरेबल होगा।
जब आप ये करते हो, जब आप यूनिफॉर्म तरीके से सभी लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, तो उस अप्रोच को कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ये कोई अलग मेथड नहीं है, मेथड सभी प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट कैलकुलेशन के तरीके में फर्क है। तो आपको वो तरीके को यूनिफॉर्म लाना पड़ेगा, यानी पांचों कंपनी के जो हेड्स हैं उनको बैठना पड़ेगा और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करती ना, अलग अलग पार्टीज साथ में आके गवर्नमेंट चला ही रही ना, महाराष्ट्र में भी तो चली रही है ना, तो फिर उनको कॉमन सोचना पड़ता है कि अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन साथ में काम करना हो तो कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन अप्रोच रखना पड़ेगा, जिसको मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। बस वही है कॉस्टिंग में, कि हम पांचों का तरीका पहले एक जैसा करो, जो डिफरेंस है वो हटाओ और फिर कॉस्ट कैलकुलेट करो। सो व्हेन यू फॉलो अ यूनिफॉर्म अप्रोच of calculation of cost, then you are said to be following uniform costing. According to me, it is neither a method nor a technique, it is just a uniformity in approach. इतना काफी है, क्योंकि वैसे वो सीए फाइनल का सिलेबस है। उन्होंने कौन सी लिस्ट में डाल दिया? टेक्निक्स में, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। इट इज ओनली यूनिफॉर्मिटी इन अप्रोच। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कभी मुलाकात हुई क्या आपकी? अरे फाउंडेशन में भी है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है? अच्छा, सुना है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो मैं रेफरेंस दूंगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग आई गया। हाँ, ये एक बात और बताना भूल गया था दोस्तों, ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, इसमें मैंने बोला था इंग्लिश और मैथमेटिक्स तो लगता ही है, और एक अजम्पशन है जो मैंने आपको लिख के नहीं दिया, अकाउंटिंग है उसमें सब्जेक्ट, यानी अकाउंटिंग लगेगा मुझे, डेबिट क्रेडिट। यदि आपने इसको भी रख के आए होंगे ऊपर मचान पे कि फाउंडेशन पास हो गया, अपने क्या करना है कॉस्टिंग का, उससे क्या लेना है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तो लगेगा। ये मैंने अजम्पशन किया, इसलिए बताने की जरूरत नहीं थी, तो सबको आता है। एनीवे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाने का पर्पस बता देता हूं, नहीं तो अभी तो अकाउंट से पढ़ना ही आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दोस्तों, कुछ चीज को कहते हैं हम अकाउंटिंग जगलरी। जगलरी यानी जादू। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसी चीज है कि प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर कुछ भी कर ले, यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ठान लिया कि कंपनी में लॉस दिखाना है तो लॉस दिखा सकता है। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? मिल लेना, लेकिन अभी कोई बताएगा नहीं आपको, थोड़ा हायर लेवल पे बात। और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ठान लिया कि लॉस मेकिंग कंपनी है, अपने को प्रॉफिट में दिखाना है, वो दिखा सकता है। झूठ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में होता है। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग जगलरी, यानी कुछ चीजों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बदलने से। अच्छा, एक सिंपल ही बात बता देते हैं, अब भी समझ लेंगे आप। कोई बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया आपने, क्या किया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझते हैं आप? कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है जिसका बेनिफिट आगे 5-10 साल मिलने वाला है, तो उसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। आपको कंपनी को लॉस में लाना है ना, पूरा डेबिट मार दो पीएनएल को इसी साल। हाँ, क्या होगा? अरे कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट करो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लॉस नहीं होगा? अरे हो गई ना, तो करा दिखा सकते हैं ना। और खर्चा चार्ज ही नहीं करना। अरे ये चक्कर में वो एनरॉन नाम की कंपनी थी, कुछ पता है क्या? पावर जनरेशन की, यूएस की, वो डूब गई ना। उन्होंने जो खर्चे थे ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको कैपिटलाइज करते चले गए वो, यानी बुक्स में नहीं दिखाया, एक्यूमुलेट करते चले गए, और असेट साइड दिखा रहे थे वो। शायद असेट साइड जो भी आइटम रहता है उसको डेबिट बैलेंस रहता है, और खर्चे को भी बैलेंस डेबिट रहता है। खर्चे को पीएनएल में मत चार्ज करो, उसको एक्यूमुलेट करके उसको बताओ इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसा अज्यूम करो, और असेट साइड दिखाते जाओ। उस चक्कर में एनरॉन कंपनी डूब गई, और उसके साथ एक बहुत बड़ी ऑडिट फर्म डूब गई, जो उनके ऑडिटर थे, यूएस की बहुत बड़ी कंपनी थी एनरॉन। एनीवे, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। पहले बिग 5 फर्म हुआ करती थी। सीए की फर्म्स के नाम पता है क्या? बड़ी बड़ी फर्म के बिग 4 अभी बची हैं, ये 5th उसी में डूबी, किसमें? एनरॉन में। बिग 4 के नाम बताओ। केपीएमजी, डेलॉयट, अर्नस्ट एंड यंग, यही E&Y ने अर्नस्ट एंड यंग, और एक पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, और एक थी आर्थर एंडरसन, सुना होगा तो। आर्थर एंडरसन वाज 5th। देयर वर 5 ग्लोबली बिग फर्म्स, ऑडिटिंग फर्म्स। आर्थर एंडरसन वाज द ऑडिटर ऑफ एनरॉन, जिसका हेड ऑफिस कहां था? यूएस। और उन्होंने सांठगांठ करके एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज किया, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज किया,
और असेट साइड दिखाते चले गए, उससे क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं क्या? जो खर्चा डेबिट होना चाहिए था वो असेट दिख रहा है, यानी फिक्टिशियस असेट थी वो। फिक्टिशियस असेट बोलते हैं ना, जिस असेट की कीमत नहीं, वो असेट साइड दिखा रहे हैं आप, जो कि डेबिट होना चाहिए था पीएनएल को, प्रॉफिट में दिखाने के लिए कंपनी को। और ऑडिटर थे आर्थर एंडरसन, वन ऑफ द बिग फर्म्स आउट ऑफ 5। तो एनरॉन भी डूबा जब पकड़े गए और आर्थर एंडरसन भी डूब गया, लिक्विडेट हो गया, उनके ऊपर केस चला यूएस में। तो अब 5 में से बचे 4, उसमें से भी एक डूबते डूबते बचा, पीडब्ल्यूसी। किसके ऑडिट में? सहारा। और उसके पहले मेरे ख्याल से वो, मेरे को भी याद नहीं आ रहा EY थे कि कौन, वो एक सत्यम का बहुत बड़ा कांड हुआ था, पता है क्या? सत्यम कंप्यूटर जो था वो भी तो डूबा ना। तो उसके ऑडिटर पे उन्होंने क्या किया, उनको पता था ये ऐसे लफड़े हुए ना तो पूरी फर्म डूब सकती है, तो उन्होंने बोला सिर्फ बैंगलोर ब्रांच के जो हेड है उनको डालो जेल में, बाकी कंपनी को हाथ मत लगाओ। शायद वो EY थे या PwC थे कोई, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, गूगल पे बाद में मिल जाएगा। ये 4 में से एक, वो भी डूबते डूबते बचे। उन्होंने क्या किया, वो और जैसे ही पकड़े गए ना, वो ऑडिट फर्म ने बोला भैया सिर्फ एक ब्रांच जिसने ऑडिट किया, जिन्होंने साइन किया, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जेल में जिन्होंने साइन किया था ऑडिट रिपोर्ट, बोले इनको डालो, पूरी फर्म को काय को पकड़ रहे तुम, जिन्होंने किया उनको ही पकड़ो, नहीं तो वो भी डूबती थी। ये सब क्या है? ये काय के एग्जांपल है, अकाउंटिंग जगलरी। अकाउंट्स में अलग अलग टाइप से ट्रीटमेंट देके आप प्रॉफिट को घुमा फिरा सकते हैं। किसी बहुत पुराने केस में जमाने की बात बता रहा हूं, शेयर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स थे, नाम भी बता सकता, लेकिन फायदा कुछ नहीं। उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी। आप स्टॉक को काय पे वैल्यू करते हैं? स्टॉक वैल्यूएशन आपने पढ़ा हो तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। और वो कंपनी पब्लिक इशू लाई थी, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, तो उनको दिखाना था कि हम प्रॉफिट में। स्टॉक काय पे वैल्यू क्या था उन्होंने? सेल्स प्राइस पे, यानी जो माल बिका नहीं उसका प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, उसको सेल्स पे दिखा के। वो नीचे नोट्स में ऑडिटर ने बोल दिया था दिस इज रॉन्ग, ऑडिटर ने अपनी जान बचाई। उसने क्या किया? उसने डिस्क्लोजर यूज करके, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ऑडिट की, उसने डिस्क्लोज कर दिया कि कंपनी ने ऐसा ऐसा किया है। कितने लोग एनुअल रिपोर्ट पढ़ते और वो नीचे की नोट्स और डिस्क्लोजर पढ़ते? कितने लोग? मैंने जैसे ही पढ़ा मैंने कहा भैया ये कंपनी में कुछ गड़बड़ है, डूबी ना वो कंपनी, डूब गई। आप समझो, स्टॉक को यदि आप सेल्स प्राइस पे वैल्यू कर रहे हो, स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हो क्लोजिंग स्टॉक, उसको सेल्स प्राइस पे दिखाओगे तो क्या होगा? इट इज एज गुड एज सेल्स। उसका प्रॉफिट अभी बुक कर लिया आपने, फ्यूचर में अब वो ओपनिंग स्टॉक भी सेल्स प्राइस पे आएगा अगले साल ट्रेडिंग अकाउंट में, और सेल्स प्राइस पे बिकेगा, तो प्रॉफिट क्या होगा? डेबिट और क्रेडिट सेम प्राइस हो जाएगी, यानी फ्यूचर प्रॉफिट आज बुक किया। क्यों? शेयर होल्डर को दिखाने के लिए प्रॉफिट में। ये सब एग्जांपल क्यों देने पड़े? मैंने जब बोला कि अकाउंटिंग जगली रही थी तो आप सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या होता है, ऐसा बहुत होता है। और अभी देखो मैं कहां से कहां ले गए यार, देखो मुझे, मैं किधर था? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग पे, तो अकाउंट्स का एग्जांपल देने चला गया। ये ऐसा ना हो या कम हो, क्या चीज? अकाउंटिंग जगलरी न हो या कम हो, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। मैं आपके सिलेबस पर ही हूं, सिलेबस छोड़ के नहीं जाऊंगा, कहीं ना कहीं काम में आएगा वो। Accounting standards are designed by our Institute of Chartered Accountants of India to bring uniformity in the way of preparation and presentation of financial statements. The purpose of accounting standard is to bring the uniformity in preparation and presentation of financial statement so that the data is comparable. ये जो accounting standard ने किया वही पर्पस यदि कॉस्टिंग में अचीव करना हो तो यू हैव टू यूज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग विच इज जस्ट अ यूनिफॉर्म अप्रोच ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। ये जरूरत से ज्यादा डिस्कशन हो गया जो किसी किताब में नहीं मिलेगा, आपको ढूंढ लेना। ओवर, हाँ, और ये मैटर भी खत्म, इसके आगे है भी नहीं है। क्यों डिस्कस किया? इंस्टीट्यूट। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, ये वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है दैट वी डू द रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपने लैंड यदि 2 करोड़ में खरीदी है तो बुक्स में 2 करोड़ में ही लेते हैं, चाहे आज उसकी मार्केट वैल्यू 10 करोड़ हो, बुक्स में आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही दिखाते हैं। अरे उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग जो बोलते हैं ना, वही हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है कि यू हैव टू रिकॉर्ड द डेटा एट हिस्टोरिकल कॉस्ट।
अभी कोई टेक्निक हुई क्या दोस्तों? क्या है? कुछ भी। दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। तो हिस्टोरिकल डेटा ही रहता अपने पास, अकाउंटिंग में भी यूज हिस्टोरिकल डेटा ओनली। एनीवे, इंस्टीट्यूट एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, राइट। ब्रीफ में बताता हूं क्योंकि एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अलॉन्ग विथ मार्जिनल कॉस्टिंग। ब्रीफ में भी, यानी आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, ब्रीफ में समझाऊंगा कि समझ लो थोड़ा सा तो मजा नहीं आएगा तुमको, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बताता हूं और बाकी हम इधर पढ़ने वाले। कहां? ये एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग को मार्जिनल के साथ पढ़ेंगे। एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग ऐसा पढ़ना है हमको। इन दिस चैप्टर marginal costing we have to study how we can prepare a cost sheet or how we can calculate cost using marginal costing approach and absorption costing approach. उसमें कुछ variation है, actually it is again a difference in the approach of calculation of cost. brief में यदि समझाना हो brief में और detail में तब कॉस्ट का और एक क्लासिफिकेशन है जो हमने एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन किया था ना, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। इसके अलावा और एक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट होता है मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए, और वो है सभी कॉस्ट को हम बांटते हैं दो पार्ट में, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। एनीवे, ये डिस्कशन में आने वाला था इसी में, यही चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, तो ये डिस्कस कर ही लेता हूं जब आने वाला था। तो कॉस्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कैटेगरी। ये अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है सेम कॉस्ट का। हाँ, जो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स पढ़े ना, उसी का दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन इज, आप हर कॉस्ट को ऐसे सोचो कि वो वेरिएबल है या फिक्स्ड। यानी क्या सोचो? वेरिएबल कॉस्ट इज वन विच वेरीज, वेरीज मीन्स विच चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन ज्यादा तो खर्चा ज्यादा, प्रोडक्शन कम तो खर्चा कम। वेरिएबल वर्ड के अंदर ही मीनिंग है दोस्तों, इंग्लिश इसलिए थोड़ा बेसिक इंग्लिश लगता है बोला हूं। वेरिएबल है जो वेरी होता है, प्रोडक्शन के हिसाब से कम ज्यादा होती है जो कॉस्ट, उसको हम बुलाते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, वो कॉस्ट चेंज होती नहीं, यानी प्रोडक्शन कम करो ज्यादा करो मत करो, वो खर्चा लगने ही वाला है, उतना ही लगने वाला है, यानी वो खर्चा क्या हो गया? फिक्स्ड। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है। बहुत सिंपल है दोस्तों, वेरी गुड, आप ही बोल रहे हो। कौन सा? रेंट को इधर डालू के इधर? फिक्स्ड। अभी ऐसे क्लासरूम मैंने किराए पे ले लिया साल भर के लिए ऑन अ रेंट ऑफ ₹2 लाख पर मंथ, तो और एक साल का एग्रीमेंट कर लिया, तो मुझे एक साल का पैसा कितना देना है? 24 लाख ना, 2 लाख पर मंथ, और एक साल का एग्रीमेंट है, तो 24 लाख तो देना ही देना है। अब मैं इसमें कितनी भी बैचेस पढ़ाऊं और कितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाऊं, तो खर्चा क्या हो गया? फिक्स्ड। इस खर्चे को हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। चलो फिक्स्ड कॉस्ट के और एग्जांपल दो। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने, रेंट। रेंट तो एकदम बढ़िया एग्जांपल है। खर्चे की बात कर रहा हूं, आपको क्या बोलना है? खर्चे का नाम बोलो। इज चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक इज अ कॉस्ट? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन व्हेन इट इज चार्ज्ड ऑन स्ट्रेट लाइन एंड WDV बेसिस, और वो दो पॉपुलर ज्यादा मेथड है। उसमें आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए इसके हिसाब से मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज करते क्या? नहीं। आप क्या देखते फिर? समझो WDV का रेट है 25% ऑन WDV बेसिस, तो जो ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है उसका इंटू 25% चार्ज कर दिया डेप्रिसिएशन। ऐसे किया ना? क्या प्रोडक्शन मैनेजर को पूछा कितने यूनिट बनाए तो चार्ज करो? नहीं। WDV और स्ट्रेट लाइन दोनों में हम डेप्रिसिएशन फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करते हैं एक साल के, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, तो वो भी कहां गया? फिक्स्ड कॉस्ट। स्टाफ सैलरी एंड वेजेस इफ इट इज पेड ऑन टाइम बेसिस, यानी मंथली सैलरी वगैरह जो दी जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो मिलेगा कि भाई तेरी सैलरी 1 लाख रुपया महीना, राइट। आप जब CA पास होंगे तो इसके आसपास आपको मिलनी चाहिए। आप जब CA पास होंगे बोला मैंने, हाँ, अभी उस बात को कम से कम 3-4 साल है, तो तब तक 1 लाख रुपीज पर मंथ बेसिक सैलरी पे पहुंच जाएंगे। तो 1 लाख पर मंथ ये CA की सैलरी, यानी 12 लाख पर एनम। तो कंपनी के लिए तो ये फिक्स कॉस्ट हो गई, चाहे कंपनी में काम हो, कम हो, ज्यादा हो, कंपनी प्रॉफिट में हो, नुकसान में हो। हाँ, ये बात अलग है, आपके जाने के बाद कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, और इतना पढ़ के जाएंगे आप, और मेरी भी इच्छा वही है। ये सिर्फ मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ना है,
है ना, इसके लिए तो पढ़ना ही है, पास होने के लिए तो पहले पढ़ना ही है, लेकिन ये सब नॉलेज बिजनेस से रिलेटेड है दोस्तों, ये आपके ध्यान में तो आ ही गया होगा। आई एम टॉकिंग डेली अबाउट बिजनेस एक्टिविटी। इस नॉलेज को एक्चुअली यूज करके यू कैन कन्वर्ट अ लॉस मेकिंग कंपनी ऑल्सो इनटू अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। इट इज पॉसिबल एंड पीपल हैव डन, क्योंकि ये सब चीजें आपको बताई, डिसीजन मेकिंग सिखाएगी, कॉस्ट कंट्रोल सिखाएगी, कहां पैसा वेस्ट हो रहा है, कहां कंट्रोल लूज है, प्लानिंग करना सिखाएगी आपको, कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाएगी। ये सब चीजों से पता चलेगा कि कहां गलती हो रही है, लॉस हो रहा है, नहीं कुछ तो गलती हो रही होगी ना बिजनेस में, तो उसको करेक्ट करो, थोड़ा एफिशिएंटली बिजनेस करो, अच्छे तरीके से करो, तो बिजनेस कैन टर्न इनटू अ प्रॉफिट। और आज आप सीए करके ज्वाइन हुए थे, टुमारो यू विल बिकम सीईओ। सीईओ पता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इंडिया में जो हम मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं ना, उसको यूएस में सीईओ बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 10 years down the line after joining that company you became CEO। फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बहुत सारी कंपनीज है, तो यू बिकम ग्रुप हेड, यू आर शिफ्टेड टू यूरोप। यू आर हैंडलिंग ओनली इंडिया टिल दैट टाइम, बट दैट ग्रुप हैज गॉट बिजनेस स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, सो यू बिकेम ग्रुप सीईओ, मैनेजिंग द ऑपरेशंस थ्रू आउट द कंट्री। कमला हैरिस पहुंची तो गई ना वहां तक, एक स्टेप नीचे पहुंची ना कमला हैरिस। कंपनी की सीईओ नहीं है, बट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो कोई कम बात है। तो आप क्यों नहीं, प्रोवाइडेड ये नॉलेज को सिर्फ यहीं बुक में रहने दिया, पास हो गए ना, जैसे बीकॉम पास हो गए ना, चाहे 30 क्वेश्चन पढ़ के पास हुए, सीखा क्या, अपने क्या करना है। बीकॉम वाले से पूछना क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री, कौन बेवकूफ ने बोला। फिर क्या करते तुम क्लोजिंग स्टॉक, एक इधर लिखते एक उधर लिखते, बस एक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते इस साइड और एक बैलेंस शीट में लिखते इस साइड, बस खत्म, उस और पास भी होते। बाकी समझ के करना क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पता है क्या, स्टॉक वैल्यूएशन करना क्या है, वो दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक लिखा रहता है, वो इधर लिखते और इधर लिखते, बस। ये पढ़ने का तरीका रहा तो बीकॉम ही कर सकते आप, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। मैं वो डिफरेंस बता रहा हूं आपको, यानी यहां तो पढ़ना है, पास होना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं थोड़ा सा लॉन्गर ऑब्जेक्टिव में बोल रहा हूं, सिर्फ सीए बनना भी ऑब्जेक्टिव नहीं ना दोस्तों। सीए बनने के बाद आपका इंप्रेशन पड़ना चाहिए ना उस ऑर्गेनाइजेशन में, कि भाई कोई नॉलेजेबल व्यक्ति आया इस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी आप जहां जाओ वहां ऐसा लाइट नजर आना चाहिए, उजाला, तो मतलब आया ना लाइफ में। और वो करना हो तो फिर ये सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली पढ़ना है और इंप्लीमेंट करना है। मैं जब इस कॉस्ट कंट्रोल पे जाऊंगा ना, तो वापस आऊंगा आपके हॉस्टल पे, आपके खर्चे कंट्रोल करने लगूंगा पहले तो। अरे पहले अपने खर्चे कंट्रोल करना तो सीखो, फिर कंपनी के सीखना, ये बात बोलता हूं मैं। अच्छा, लोग मनी मन क्या सोचते, मैं तो बोलते रहता, लोग मनी मन सोचते साला पैसा तो हमारे बाप का खर्चा हो रहा है, ये क्यों बोले जा रहा है, इसको क्या जरूरत पड़ी है। लोग बोलती है ऐसे, पैसा मेरे बाप का खर्चा हो रहा है, ये बोल रहा है, ये अकल सिखा रहा है अपने को, ये खर्चा करो ये मत करो। अरे मैं सोच रहा हूं कि ये पढ़ रहा है, उसको एप्लीकेबल करो। उसके किसी ने भी कमाए हो पैसे, मेहनत से ही कमाए ना। इस पे से एक डायलॉग याद आ गया, कौन से, वो खर्चे पे से, हाँ, जो तब बोलने वाला था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, अभी बोल देता हूं। दोस्तों, ऐश तो माँ बाप के पैसों से ही होती है, ऐश तो माँ बाप के पैसों से ही होती है। जब आप खुद कमाएंगे ना, खुद के पैसे से सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। क्या बोल गया मैं, सीए बनने के बाद जब खुद पैसे कमाएंगे और खर्चा करेंगे ना, तब ये सेंटेंस का मीनिंग पता चलेगा। खुद के पैसों से सिर्फ जरूरतें पूरी होती है, ऐश तो माँ बाप के पैसों से ही होती है, तो ऐश कर लो। खुद कमाएंगे तब नहीं होंगी ऐश। साला किधर से किधर गए अपन, फिक्स कॉस्ट से ऐश पे चलेगा, गड़बड़ हो गई, सैलरी पे थे अपन। तो व्हेन फिक्स्ड सैलरी इज पेड टू द स्टाफ, फिक्स्ड सैलरी, देन इट विल कम हियर। बट सपोज a sales manager gets a salary like, example, 50,000 per month fixed plus 2% commission on sales, 50,000 plus 2% commission on sales। तो इसकी टोटल सैलरी को हम बुलाते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट।
सेमी वेरिएबल बुलाओ या सेमी फिक्स्ड, क्योंकि उसमें एक पार्ट फिक्स्ड है और एक पार्ट वेरिएबल है परफॉर्मेंस पे, तो इसको कॉस्ट को बुलाते हैं सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है फिर कि ठीक है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट ठीक है, अब इसका काम करो, इसका फिक्स्ड पार्ट निकालो इधर डाल दो, कौन मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है, और वेरिएबल पार्ट इधर डाल दो। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग रिकॉग्नाइजेस ओनली टू कॉस्ट, यानी सेमी वेरिएबल है मानते वो, लेकिन सेमी वेरिएबल ऐसे कैसे काम की नहीं है, उसके दो हिस्से करो, फिक्स्ड अलग करो, वेरिएबल अलग करो, क्योंकि यही दो कॉस्ट पे वो टेक्निक डिपेंडेंट है। अब मैं था एक्चुअली कहां पर, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, लेकिन इसको कंसेप्चुअली समझाना हो तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। अब वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल ले लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑल प्राइम कॉस्ट मींस एंटायर प्राइम कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनको डायरेक्ट बोलते हैं क्यों, क्योंकि उनका डायरेक्ट रिलेशन है ना प्रोडक्शन से। अरे मटेरियल उतना ही लगेगा जितना प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा। मैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, तो ये खर्चा तो डायरेक्टली वेरिएबल है, यानी प्रोडक्शन ज्यादा तो खर्चा ज्यादा, तो प्राइम कॉस्ट बाय डिफॉल्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। जो प्राइम कॉस्ट पड़ा वो वही है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है हमको ऐसे नाम से मत बुलाओ, वो प्राइम कॉस्ट को इस कैटेगरी में डाल दो, कौन से, वेरिएबल कॉस्ट। और फिर वो क्या करते हैं, जो ओवरहेड्स है बचे हुए तीन, कौन से, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिक्स भूलना नहीं है दोस्तों, मैं बेसिक्स इतने प्रेम से इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि बेसिक्स पूरे कॉस्टिंग सिलेबस तक लगेंगे और सीए फाइनल तक लगेंगे। हाँ? तो हमने जो कॉस्ट को क्लासिफाई किया था प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स, बराबर, ओवरहेड्स में तीन किए थे, तो प्राइम कॉस्ट को पूरे को डाल दो इधर, किस कैटेगरी में, वेरिएबल, और ओवरहेड्स को स्प्लिट करो। ओवरहेड्स में से कुछ वेरिएबल हो सकते हैं ओवरहेड्स और कुछ फिक्स्ड, तो वेरिएबल ओवरहेड्स को इधर ले आओ, यानी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन, वेरिएबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे सेल्स कमीशन, ये सेलिंग ओवरहेड्स है, लेकिन वो क्या हुआ, वेरिएबल, सेल ज्यादा तो खर्चा ज्यादा, सेल कम खर्चा कम। तो ओवरहेड्स में से वेरिएबल अलग जाएंगे, फिक्स्ड अलग जाएंगे। जैसे ओवरहेड्स का और एक एग्जांपल ले लेते हैं वेरिएबल और फिक्स्ड का। तो वेरिएबल में जो ये पावर रिक्वायर और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर टू रन द मशीन, मशीन को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है उसको पावर बोलते हैं, मतलब दोनों का एक ही, पावर यानी हेवी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मशीन जब ज्यादा चलेगी तभी पावर ज्यादा कंज्यूम होगी और तभी उसका बिल भी ज्यादा आएगा। तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो मशीन ज्यादा घंटे चलेगी, मशीन ज्यादा घंटे चलेगी तो पावर ज्यादा कंज्यूम होगी, यानी पावर कॉस्ट इज वेरिएबल। वो है ओवरहेड्स में बट इट विल कम टू वेरिएबल कैटेगरी। और वही आपने फैक्ट्री रेंट बोला, प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन बोला, वो भी ओवरहेड्स है बट इट विल गो टू फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? और कोई आइटम सेमी वेरिएबल रहा तो स्प्लिट करके अपने अपने कैटेगरी में डाल देना। अब इतना सारा डिस्कशन सिर्फ ये समझाने के लिए हुआ कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में फर्क क्या है। उसमें एक छोटे से अप्रोच में फर्क है, वो मैं ब्रीफ में बता रहा हूं, डिटेल में पढ़ना है बाद में। जब हम स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं या किसी गुड्स की वैल्यू निकालते हैं, when we do the valuation of stock, we generally do it at cost or net realizable value, whichever is lower. This is accounting. In costing we do it by default at cost. या प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना है, राइट, प्रोडक्ट की कॉस्ट पर ही उसका स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। तो स्टॉक वैल्यूएशन में कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करना, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का कहना है और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का कहना है। मार्जिनल कॉस्टिंग का कहना है स्टॉक वैल्यूएशन विल बी डन ओनली एट वेरिएबल कॉस्ट, यानी आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे तो उस कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट लेंगे, सिर्फ वेरिएबल, फिक्स्ड नहीं। ये ब्रीफ में बता रहा हूं, डिटेल में पढ़ना है। और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का कहना है कि नहीं, दोनों लेना है, वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स्ड कॉस्ट भी। बस तो इतना अप्रोच में फर्क है। थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, पूरा नहीं क्योंकि पूरा चैप्टर है दोस्तों, बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं अभी बताने गया तो ये छूट जाएगा, मेरा चैप्टर 1 छूट जाएगा और मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूं। पहली मुलाकात और डिटेल्ड मुलाकात में फर्क भी तो होना चाहिए ना कुछ। फिर भी मैं पहली मुलाकात में थोड़ा ज्यादा ही बता देता हूं। पहली मुलाकात में नाम के अलावा थोड़ा सा और भी बता ही देता हूं, भाई बहनों के नाम, माँ बाप के नाम भी साथ में बता देता हूं, जबकि सिर्फ नाम बताना चाहिए था पहले दिन, लेकिन मेरी आदत है ज्यादा बोलने की।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये पेन बनाने के लिए खर्चा लगा, ये लगा 30 रुपीज, 30 रुपीज इज टोटल कॉस्ट। लेकिन टोटल कॉस्ट को हम ऐसे बांटेंगे, अब कैसे, वेरिएबल और फिक्स्ड। तो वेरिएबल में कौन कौन सी आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट आएगी, और ओवरहेड्स में से कुछ वेरिएबल में और कुछ फिक्स में जाएंगे, बराबर, ऐसा क्लासिफिकेशन आएगा। तो मैं 30 रुपीज का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, इसमें से 20 रुपीज इज वेरिएबल कॉस्ट और 10 रुपीज इज फिक्स्ड कॉस्ट एक यूनिट की, राइट। और टोटल कॉस्ट ये पर यूनिट है, हाँ, पर यूनिट ऑफ पेन, पर पीस ऑफ पेन। अब हमने 10,000 पीसेस प्रोड्यूस किए, 10,000 pieces we have produced and 8,000 pieces sold। तो स्टॉक कितना बचेगा दोस्तों, 2,000 यूनिट्स या 2,000 पीसेस का स्टॉक नहीं बचेगा। तो इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं करनी पड़ेगी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए, करनी पड़ेंगे ना। अब जरा अच्छा समझ में जाएगा आपके। यदि मैं मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से स्टॉक वैल्यूएशन करूं तो स्टॉक की वैल्यू रहेगी 2000 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यूएशन होगा, ओनली वेरिएबल कॉस्ट पे 2000 यूनिट्स इंटू 20। और यदि एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच से वैल्यूएशन हो रहा है तो ये 20 प्लस 10 यानी स्टॉक की वैल्यू 30 रुपीज इंटू 2000 यूनिट्स आएगी। कौन से मेथड से, एब्सॉर्प्शन कॉस्ट। ये अप्रोच है, अप्रोच है। उसमें अप्रोच में फर्क सिर्फ एक जगह है, फिक्स कॉस्ट की ट्रीटमेंट में फर्क है। फिक्स कॉस्ट को यहां पर एक्सक्लूड किया है, यहां पर इंक्लूड किया है। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट वैल्यूएशन में इंक्लूड करते, स्टॉक वैल्यूएशन में, मार्जिनल कॉस्टिंग में एक्सक्लूड करते, बस इतना फर्क है कॉस्ट कैलकुलेशन के अप्रोच में। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अब एक कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टॉक वैल्यूएशन करेगी तो वैल्यूएशन अलग आएगा, दूसरी एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से करेगी तो वैल्यूएशन अलग आएगा। और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यदि बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है क्या कम होता है, पक्का। मैं अकाउंटिंग चेक करते रहूंगा बीच बीच में, कॉस्ट अकाउंटिंग में का अकाउंटिंग आपने संभालना है, कॉस्टिंग में संभालूंगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, हाँ सच सच। अरे आप क्रेडिट साइड लिखते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक को, क्रेडिट साइड बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये मैंने कंफर्म इसलिए किया, ये सब चीजें लगने वाली हैं। और मैंने देखा कभी कोई लोग बोलते सर क्या फर्क पड़ता, तो मैंने कहा भैया या तो मैं रिटायरमेंट ले लेता या तू कोर्स छोड़ दे। तो क्लोजिंग स्टॉक की बेसिक चीज को इमेजिन नहीं कर पाया उसके प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो तू गलती से आ इधर। एनीवे, तो स्टॉक वैल्यूएशन पे फर्क पड़ता है, प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है। डोंट वरी, हम इस चैप्टर में मार्जिनल कॉस्टिंग में एक सब टॉपिक है जहां पर कॉस्ट शीट बनाएंगे इस अप्रोच से भी और कॉस्ट शीट बनाएंगे इस अप्रोच से भी, दोनों के प्रॉफिट में फर्क आएगा और उस फर्क का रिकंसिलिएशन भी करेंगे। डोंट वरी, ये सब सिलेबस में है। आपको अभी इसलिए बता दिया कि इतना ही नहीं है। ये क्या समझाने के लिए था, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। इंस्टीट्यूट ने इसको काय में लिखा है, टेक्निक्स। Again, it's a different approach. Approach of valuation of stock has changed due to change in the treatment of fixed cost. That's all is absorption costing. But that is written here. तो ठीक है, ये तीन तो पक्का है, इस पे ये यूनिफॉर्मिटी है। मेरे भी ओपिनियन में ये तीन टेक्निक है, इंस्टीट्यूट के ओपिनियन में भी ये तीन टेक्निक है, लेकिन इंस्टीट्यूट के ओपिनियन में तीन और है, तो 6 टेक्निक है लिखने के लिए, राइट। Uniform costing is again a uniform approach. Absorption costing is also a approach about a treatment of cost. And historical costing is we record the data at historical cost, which is a fact, which is one of the accounting assumptions also, I think. But anyway, that is written under the head techniques. अभी मैं क्या कर रहा है, ज्यादा इंस्टीट्यूट से ऐसा पंगा नहीं ले रहा है, आपकी कॉस्ट में नहीं ले रहा। पहले मैं बोलता ही नहीं था, मैं है ही नहीं टेक्निक, यही तीन है। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है, मेरे ऐसा बोलने से आप ये तीन ही नाम लिख के आएंगे आंसर में, और वो एग्जामिनर 6 ढूंढ रहा है, उसको 3 नाम कम मिले, मार्क्स कम हो जाएंगे। तो मैंने सोचा मेरी जिद की वजह से आपका नुकसान न हो, तो मैं भी मिडल अप्रोच ले लिया मैंने। मैं इंस्टीट्यूट ने की बात भी आप तक पहुंचाऊंगा, प्लस मेरा ओपिनियन भी दूंगा। और शायद इसलिए मैंने आपको बोला था कि मेरे वेबसाइट पे जब मैं सजेस्टेड आंसर या कुछ चीज डालता हूं और मेरा और इंस्टीट्यूट के ओपिनियन में डिफरेंस है, तो मैं नोट लिख देता हूं कि इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है, मेरा ओपिनियन ऐसा है। मैंने लिखना चालू कर दिया कि आपका नुकसान न हो।
लेकिन मार्क्स मिलाने के लिए इंस्टीट्यूट के रास्ते से जाओ, कॉन्सेप्ट समझने के लिए मेरे रास्ते से चलो। ये हो गया टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। बेटा पक्का पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, ये हम जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे तब मैं आपको लिखवा के ही दूंगा, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन अभी डिस्कस करके फायदा नहीं है। सिर्फ एक ब्रीफ में तूने पूछा ये तो बता दूं, ब्रीफ में बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डिफरेंस। बजटरी कंट्रोल इज एट अ मैक्रो लेवल। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था ना आपने, तो मैक्रो लेवल पे जो कंट्रोल होता है, मैक्रो लेवल पे ऊपर के लेवल पे वो ये है, और एकदम रूट लेवल पे जो कंट्रोल होता है माइक्रो लेवल पे वो ये है। सो दिस इज माइक्रो लेवल कंट्रोल, दिस इज मैक्रो लेवल कंट्रोल, लेकिन ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसमें से ये निकल के आता है, लेकिन ये बहुत डिटेल में जाएंगे माइक्रो लेवल पे और ये मैक्रो लेवल पे, और इसका फर्क मैं लिखवा के भी देने वाला हूं, डोंट वरी। लिखवा के दूंगा यानी है तो प्रिंटेड रहेगा, और प्रिंटेड नहीं रहा तो मैं लिखवा के दूंगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ना है अपने को, ठीक है। चलो ये हो गया आपका टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, यानी थर्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। सो दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दीज थ्री, दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो है ही अपना लगने वाला है जो आप पढ़ चुके हो। मेरा बहुत सारा डिस्कशन खत्म होते आ रहा है, मैं क्या सब टॉपिक लूं सोच रहा हूं। मैंने मेजॉरिटी डिस्कशन हो गया, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन एक अच्छी कॉन्सेप्ट लेते पेज नंबर 8 पे से, पेज नंबर 8, कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू। कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो पढ़ना ही है दोस्तों, लेकिन मैं अभी जो डिस्कस करने जा रहा हूं, कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द थ्री कॉन्सेप्ट्स, ऑन दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स एंटायर बिजनेस एक्टिविटी इज डिपेंडेंट। आई रिपीट, on these three concepts entire business is dependent, means every businessman knows these three, because without which he cannot do the business. मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप मुझे बोल देना कि कौन सा बिजनेस ये तीन कॉन्सेप्ट को छोड़ के चल सकता है। यू विल योरसेल्फ एग्री विथ मी, यानी हर बिजनेस का क्रक्स, यदि ये तीन चीजें नहीं पता तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते लाइफ में। कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, पेज नंबर 8 पे जिनके पास नोट्स है। This topic, this chapter will take few more days because there are a lot many other concepts left. Majority part I have discussed, majority part. Anyway, एक definition याद आ गई, cost accountancy की printed है notes में, ऐसे ही बोल रहा हूँ, उसमें सब कुछ include हो जाता है। उसकी bookish definition है, cost accountancy is the application of costing, cost accounting principles, methods, techniques to the art, science and practice of cost control and ascertainment of profitability, and it includes presentation of information therefrom for the managerial decision making. Over it. अब क्या करूं, लिखा है उधर, डेफिनेशन है कॉस्ट अकाउंटेंसी की, कुछ नहीं दोस्तों। अब उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते तो समझ में आएगा। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ योर बेसिक कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक, यानी सब कुछ आ गया उसमें। बेसिक कॉस्टिंग आ गया, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन किया, वो सब आ गया, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। फॉर व्हाट? फॉर कॉस्ट कंट्रोल, एक तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए ये एक, और ये भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल के लिए। एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा वर्ड है, असर्टेनमेंट यानी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। शायद प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? कॉस्ट। सेल्स प्राइस में से कॉस्ट माइनस होगी तभी प्रॉफिट आएगा ना। तो डेफिनेशन में असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, बट असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड्स असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ना, विदाउट विच यू कैन नॉट असर्टेन द प्रॉफिट। तो डेफिनेशन में असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट लिखा है, बट फर्स्ट यू हैव टू असर्टेन कॉस्ट। तो ये सब मेथड्स काय के लिए? और इसका मतलब ही कॉस्टिंग का क्या है? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट की तो तरीके ही है। And using that presentation of that information from costing records, presentation of information derived therefrom, यानी वहां से जो information मिलती है, that information
should be used for managerial decision making. अरे कुछ नहीं दोस्तों, वो डेफिनेशन में डिसीजन मेकिंग आ गया, कंट्रोल आ गया, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट आ गया, ये सब मिला के जो बनता है उसको डेफिनेशन में डाल दिया कॉस्ट अकाउंटेंसी. ठीक, अब वो 3 वर्ड पे ले चलता हूं. मुझे पहले एक 3 डेफिनेशन डिस्कस करनी थी ना, वो हो गई कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी. लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंसी को बोलने के पहले इतना सब समझाना था, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंसी की डेफिनेशन में सब कुछ इंक्लूडेड है. असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, कॉस्ट कंट्रोल भी, डिसीजन मेकिंग भी, एवरीथिंग इंक्लूडेड. एनीवे, अब हम ये चीज पे आते हैं, कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू. कॉस्ट इज अ फैक्ट, price is a decision and value is an opinion. अच्छा, मैं वहां से वर्ड बाय वर्ड ऐसा पढ़ के सुनाऊं क्या? कॉस्ट इज ऐसा नहीं ना, वो आप पढ़ना है इसका मतलब घर पे रिवीजन के लिए. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग वर्ड बाय वर्ड आई विल एक्सप्लेन इट इन माय ओन स्टाइल. बाकी बुक की स्टाइल यहाँ है, वो पढ़ लेना आप, राइट. सो ओनली एट फ्यू प्लेसेस जहां पर थियरी समझाना है तो वहां मैं पढ़ के यहां से समझा दूंगा. आई विल रीड एंड आई विल एक्सप्लेन. बाकी कॉन्सेप्ट्स मैं एकदम लाइन बाय लाइन यहां से नहीं पढ़ रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल समझना है. व्हाट इज इट दिस? मैन्युफैक्चरर के एंगल से, मैन्युफैक्चरर, इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ लेट अस से सेम अगेन मार्कर पेन ही ले लेते हैं. नाउ यूजिंग अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ कॉस्टिंग, सपोज आई मैन्युफैक्चर दीज पेन्स इन बैचेस, सो आई हैव टू यूज बैच कॉस्टिंग. तो एक बैच प्रोड्यूस की मैंने 1000 पेन की, बैच की कॉस्ट निकाली डिवाइडेड बाय 1000 पेन, मुझे कॉस्ट पर पेन मिल गई. द कॉस्ट पर पेन इज ₹30. तो इट्स अ फैक्ट ना, देख लो ना, ये रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग पर ही बेस्ड रिकॉर्ड है. मैंने मटेरियल खरीदा था, लेबर, ओवरहेड्स, ये खर्चा, ये कैलकुलेशन का तरीका, ये कॉस्ट शीट, इतना खर्चा लगा, उसमें 1000 पेन बने, एक पेन की कॉस्ट 30 आई. तो कॉस्ट इज अ फैक्ट, कैन बी प्रूव्ड, डेटा है, वाउचर्स है, खर्चे के प्रूफ है. सो कॉस्ट इज अ फैक्ट. अब ये पेन मुझे बेचना है, तो मैं क्या डिसाइड करूंगा? इसकी सेल्स प्राइस. ये प्राइस का मतलब सेल्स प्राइस. तो ये सेल्स प्राइस अपने आप ही कहीं से आ जाएगी क्या? तो डिसाइड कौन करेगा? मैं ना, कॉस्ट के बेसिस पे आएगी, ये बात बराबर है, डिसाइड तो मैं करूंगा ना. तो इट्स अ डिसीजन. अरे क्या प्राइस पे बेचना है, ये मेरा डिसीजन है, मेरा डिसीजन है, मुझे 50 रुपए में बेचना है. तुम बोलेंगे 50 रुपए ज्यादा होते, 40 में बेचना हो, तो तुम्हारा डिसीजन है, तुम भी बनाओ ये पेन, बेचो 40 में, मैंने कहा रोका है. कोई बोलेगा नहीं 20 रुपए में बेचना है, 20 रुपीज, कॉस्ट से भी नीचे, मुझे मार्केट तोड़ना है, ठीक है, आपका डिसीजन है. किसी को फ्री में पढ़ाना है, क्यों? अब ये भी सीए पास हो, उसको खड़ा होना है, उसको बताना है पब्लिक को मैं कैसा पढ़ाता हूं, पढ़ा भाई फ्री, वो तेरा डिसीजन है. अरे बराबर बोला कि नहीं? मैं समझाने का तरीका है कि क्या प्राइस पे बेचना, ये आपका बिजनेस डिसीजन है. एक्चुअली इस पर एक चैप्टर है सीए फाइनल में, प्राइसिंग डिसीजन, कि कैसे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से ये प्राइस फिक्स करने का डिसीजन लिया जाता है. सबसे कॉमन तरीका है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स प्राइस. दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. ये भी मेथड का एक नाम है जो सबसे पॉपुलर है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से जब आप सेल्स प्राइस डिसाइड करते हो तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग डिसीजन. लेकिन ऐसे ये एक नहीं है, ये पॉपुलर तरीका है, लेकिन ऐसे ढेर सारे तरीके हैं, ऐसे ढेर सारे तरीके. कभी कभी लोग लॉस में भी बेचते हैं. अच्छा जाने दो, दूर की बात काय को लेते हैं. जियो ये जब लॉन्च हुआ था कुछ साल पहले, फुकट में दिया, तो इनको खर्चा नहीं लगता क्या? फिर फुकट में क्यों दिया? ये डिसीजन क्यों लिया फुकट में बेचने का? फ्यूचर के लिए ना. मैंने तभी बोला था लोगों को जिंदगी भर फुकट में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना. ये बहुत सोची समझी चाल है उन लोगों की. एक्चुअली चाल क्या थी बताता हूं, क्या लिखा है और क्या समझना. नाम था जियो,
लेकिन पर्पस था हम जियो तुम मरो। यानी बाकी कंपनी, बाकी टेलीफोन वाली कंपनी, लिखने के लिए नाम जियो। और प्लानिंग क्या थी, डिसीजन क्या सोच के लिया था? ये तो अब भी आए ना मार्केट में, उनके पहले तो 4-5 एस्टैब्लिश प्लेयर थे, लेकिन उनका था कि हम आ रहे हैं मार्केट में तो क्या होना चाहिए, तुम सब हटो। अब ऐसे कैसे हटेंगे बोलने से, वो तो एस्टैब्लिश प्लेयर है। बोले ठीक है, हम जियो तुम मरो, फुकट में बेचेंगे हम, 6 महीने साल भर, जब तक तुम मरते नहीं तब तक बचते रहेंगे हम, हमारे पास है उतने पैसे, तुम सब मर जाएंगे फिर अपनी मोनोपोली। ये बिजनेस पॉलिसी है, लोगों क्या कर सकते हैं, याद आया तो बता दिया। तो ये क्या है, अपना अपना डिसीजन है। और अब इंपॉर्टेंट बात, अच्छा ये दो पहले बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज डन टू अर्न प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्राइस, प्राइस का मतलब ही सेल्स प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट। प्राइस और कॉस्ट, सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट है जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो। आपको लगता है कोई बिजनेस ये सोच के चालू करता है कि मुझे तो लॉस करना है? आप क्यों बिजनेस कर रहे हो? मुझे बहुत लॉस करना है। ऐसा ऐसा कोई करता है क्या? राइट? आप सीए क्यों बन रहे हो? तो पूरे समाज की फुकट में सेवा करना है, फुकट में ऑडिट करना है, फुकट में टैक्सेशन का रिटर्न फाइल करना है। ऐसा है? करते ही नहीं ऐसा कुछ। तो कहने का मतलब हर बिजनेस में डिसीजन ये दो पर ही है, यानी every business runs on profit, want to earn profit, and profit is a difference between these two. So these two are very important concepts for business. मैं जो चीज पे जा रहा हूं वो क्या है कि बिजनेस ये तीन चीज के बगैर नहीं चलता। अब तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एन ओपिनियन, वैल्यू इज द बेनिफिट और यूटिलिटी रिसीव्ड बाय अ कस्टमर। एक बार और, वैल्यू इज द बेनिफिट और यूटिलिटी रिसीव्ड बाय अ कस्टमर। वो कस्टमर के एंगल से थोड़ा और इलस्ट्रेट कर देते। आपको भूख लगी और फिर आपने बाहर जाने के बाद, लेक्चर के बाद, किसी स्टॉल से कुछ ब्रेकफास्ट परचेज किया टू सेटिस्फाई योर हंगर। तो आपने वो ब्रेकफास्ट खरीदा, 20 रुपीज दिए और ब्रेकफास्ट लिया और खा लिया। तो आपने 20 रुपीज क्यों दिए? आपने ये प्राइस दी ना उसको, 20 रुपीज प्राइस, उसके लिए सेल्स प्राइस ही थी ना जो आपने उसको पे की। काय के लिए? टू सेटिस्फाई योर हंगर। तो कुछ मिला आपको, वो जो मिला आपकी हंगर सेटिस्फाई हुई, दैट इज वैल्यू। Value is that benefit or utility which a customer receives when a customer purchases a product or a service. Whenever a customer purchases a product or service and he pays this price, in return he gets something. His needs are satisfied. That is called value. That is the benefit received by a customer. आप यदि सीए नहीं कर रहे होते तो मेरे सामने होते बैठे हुए, वो भी पैसे देके। अच्छा इतना छोड़ो, जो सीए नहीं कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, उसको बोलना मेरी सर से बहुत पहचान है, फुकट में बैठाते तेरे को इधर, फिर भी नहीं बैठेगा 2 दिन के बाद। अरे बाप रे, 2 घंटा इसको कंसंट्रेशन से सुनना, मोबाइल बंद करके, इतना हेवी डिस्कशन। वो बोलेगा तूने भी पैसे दे दिए तो भी नहीं आना मेरे को। क्यों? बिकॉज दैट कस्टमर डजंट फाइंड एनी वैल्यू इन दिस, क्योंकि उसको सीए बनना ही नहीं है। अब देखो बीकॉम स्टूडेंट को इस क्लास में कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही, उल्टा वो तो परेशान हो गया 2 घंटे बैठ के, और आप लोग पैसे देके बैठ रहे हो, यानी आपको इसमें कुछ वैल्यू नजर आ रही है। इसका मतलब दो कस्टमर के ओपिनियन में वैल्यू अलग अलग है। देयरफॉर वैल्यू इज एन ओपिनियन, because it is in the eyes of customer, in the opinion of customer, the value may be different for same product. दूसरा एग्जांपल, ये मार्कर पेन 50 रुपीज पर पीस से मैं खरीद के लाता हूं, 10-10 पेन का बॉक्स मैं लाता हूं खरीद के, क्यों? मुझे जरूरत है। तो इन माई आईज दिस मार्कर पेन हैज अ वैल्यू। आप लाएंगे इसको खरीद के, क्या करेंगे? खरीदेंगे इसको? अच्छा 40 रुपए में देता है एक पेन,
₹30 में देता है। अब बोलेंगे रख ले तेरे पास ही, नहीं होना बोल दिया ना एक बार, काय को टाइम पास करा रहा है? Why in your opinion, in your eyes, it has got no value. आपको कुछ लेना देना नहीं इसका। अच्छा, मैंने अगली बैच में बोर्ड पे नहीं पढ़ाया और वो टैबलेट पे पढ़ाया, तो in my eyes also this pen has no value. Situation has changed because I don't need it now. I'm not teaching on the board, I'm teaching on tablet. So when I don't need it, I don't have a value. So value is the utility or benefit in the eyes of customer. And that is the reason he pays you this price. इसका सिंपल मतलब, अच्छा कोई भी बिजनेस बिना कस्टमर के एग्जिस्ट हो सकता है क्या? एनी बिजनेस, या तो आप गुड्स बनाते हैं या सर्विस, लेकिन आप जो गुड्स देते या जो सर्विस देते उसमें लोगों को कुछ भी वैल्यू नजर नहीं आती, तो लोग पैसे देके खरीदेंगे क्या? नहीं। इसका मतलब ही योर बिजनेस शुड क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स। यहां तक आ गए आप? अब मेरे को बताओ ये 3 छोड़कर कौन सा बिजनेस चला सकते हैं आप? कुछ भी नहीं चलता ना दोस्तों, जब तक वैल्यू देते नहीं कस्टमर को, वो आपको प्राइस देगा नहीं, और ये प्राइस में से ये कॉस्ट रिकवर करने के बाद कुछ बचना चाहिए, तो मेरे को बिजनेस करने में फायदा है, यानी रिकवर होके प्रॉफिट बचना चाहिए। तो ये 3 के बगैर बिजनेस चलता नहीं। अब इसको ओपिनियन क्यों बोला? जैसे ओपिनियन में चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे विराट कोहली ने रिटायर होना चाहिए या नहीं, तो सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। रहाणे को कैप्टन बनाना चाहिए या नहीं, ओपिनियन में डिफर। ओपिनियन में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑल्सो एंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन ऑल्सो। Similarly, value received by a customer may change from customer to customer or situation to situation. आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था आपने। जब आपको भूख लगी थी और पहला एप्पल खाने को दिया मैंने, ये पॉपुलर एग्जांपल है ना उसका, डिमिनिशिंग, तो आपको बड़ा अच्छा लगा, वैल्यू रिसीव्ड वाज वेरी हाई, क्योंकि आप भूखे थे। फिर मैंने दूसरा भी जबरदस्ती खिलाया, कम हो गई वैल्यू। तीसरा खिलाया, अब बोले नहीं होना, मैंने नहीं खाना ही पड़ेगा, तेरे को पहला खाते समय बहुत मजा आया था ना, खा तीसरा। चौथा, 5वें के बाद आप बोलेंगे तेरे पैर पड़ता, मेरे को छोड़ दे भैया, पहला भी नहीं होना, ये भी निकाल के देता तेरे को बाद, मेरे को क्या पता था पहला खाने के बाद ये सब खाने पड़ते करके, ये भी ले ले। तो सेम कस्टमर वैल्यू गोज ऑन डिमिनिशिंग, वो जो लॉ पढ़ा था आपने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी यानी बेनिफिट, दोस्तों उसी को तो मैं बोल रहा हूं वैल्यू। ये क्लियर है? कॉस्ट इज अ फैक्ट, प्राइस इज अ डिसीजन एंड वैल्यू इज एन ओपिनियन। आज हम यहां पर रुकते हैं, राइट? आज के लिए